Good evening, friends. My name is CA Satish Goyal, and I welcome our guest speaker, CA Manmohan Khemkaji, CA Jagjit Singh Jax, and all the participants who are present and who are going to be present. Let us start and listen to our CA motto song first. Yashasundeshu Jagrati Yashasundeshu Jagrati Kamam 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 Pursho Nirmimana Nirmimana Tadeva Shukram Tadeva Shukrada Brahma Tada Brahma Tasmin lokaha tasmin lokshataha shataha sarve taduna jyavikaschana etadvaita etadvaita. Thank you. So first of all, my apologies to the house for starting this webinar with slight delay of 10 minutes. It was, as was last day or yesterday also, my broadband is not working properly. Even in CA Moto Song, it disconnected. So my connection disconnected and I rejoined again. So it was very fraction of a second. Okay. So friends, we have CA Manmohan Khemkaji with us. We all know CA Manmohan Khemkaji. However, just to introduce him to the house, he is a visiting faculties for issues relating to economies, finance, taxation on various social and corporate platforms. He is visiting faculty for GST and service tax for post-qualification and direct tax certificate course and other courses of our institute. He has delivered more than 350 honorary lectures as visiting faculty at various CP study circles, groups, branches, regional council, and other ICI programs, and also other professional and trade forums. He's been co-opted member of our indirect tax committee of our institute during 2011-12, information technology committee 2010-11, technical observer of masters in business finance course ICI 2 years, technical observer of certificate course on business valuation for ICI 2 years. He was a member ICI study group for guidance note on corporate social responsibility 2013, ICI study group for corporate governance 2002, and many more. Contribution of Khemkaji to the society at large, besides being founder president of CA Vichar Manch, which is an NGO for welfare and voice of CAs and other tax and professionals, finance professionals. He is a patron trustee, Shri Agrasen International Hospital, a 400-bed super specialty charitable hospital, Rohini. Chairman Indirect Tax Committee of All India Chartered Accountants Society, founder executive member, STAR, General Secretary, BVSS, founder West Delhi Study Circle, founder Karol Bagh West End TP Study Circle, member Rameshwar Lal Meva Devi Charitable Trust, NGO working for water conservation, water reservoir restoration, and health and medical care in remote rural areas. So he's been member, life member, associate of so many other associations, social clubs, Rotary Club of Delhi, etc. So as a founder of CA Vichar Manch, CA Vichar Manch is a NGO which is imparting educational programs for more than 300 hours in last 3 years on various topics, including GST, direct taxes, IBC, company law, audit and insurance, succession planning, economic issues, etc.
various publications on company law, audit and assurance, mini tax ready reckoner, handbook on GST annual return, audit and audit documentation. Various suggestions were given by CA Vicharman to central government on GST through GST reform group. Set up a grievance redressal and legal aid cell for professionals, a mentor successor program, a royalty loyalty program through fusion of senior and young members, and has been promoting young and new writers through technical and publishing support. Besides this, CA Vicharmanch is also assisting young chartered accountants, not only young chartered accountants, various students of CA course and other professional courses also, wherein now under pandemic, lots of students have lost one or both of the parents. So CA Vicharmanch is contributing to their life. I would rather request Manmohan Khemka ji to address to let our members know about CA Vicharmanch more. Before I hand over to Manmohan Khemka ji, let me introduce today's topic. So we are all chartered accountants in the profession, and our guide, our Bible is code of conduct prescribed by our own institute, जिसको हमें बिल्कुल in letter and spirit follow करना है, otherwise we might be in trouble. So today Manmohan Khemka ji will enlighten us on various provisions of revised code of conduct and professional ethics. And before I hand over to Manmohan ji, Jagjit Singh, if you have to say something. Thank you, Satish ji, and very good evening, warm good evening to all the participants and today's speaker, Manmohan Khemka ji. So welcome, sir, Manmohan sir, on behalf of Shastri Nagar CP Study Circle, on behalf of all the members of the study circle. And whenever Khemka ji come for a different topic. So today Khemka ji came for the code of ethics. So always it's a great opportunities for the listener to understand and to grab the knowledge from the the Khemka sir. So Khemka sir always whatever experience sir having with him, always try to exchange, always try to share with the participant or the members for the benefit of the members. So that is why even I'm very keen to listen him. So waiting for the presentation of Khemka sir. So Khemka sir, once again welcome on behalf of everyone, and over to Satish ji. Thank you. Thank you, Jagjit. So over to Khemka sir for his deliberation. Please, sir. थैंक यू वेरी मच, और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मैं व्यक्त करता हूँ माननीय सतीश जी का और माननीय जगजीत सिंह जी का, कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है मेंबर्स के साथ में इंटरेक्ट करने की, एंड दैट टू ऑन ए वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशियल टॉपिक, दैट इज़ कोड ऑफ एथिक्स. बिफोर आई स्टार्ट माई डेलिब्रेशन, जैसा मुझे सतीश जी ने कहा है और मेरे मन की भी इच्छा रहती है कि इस कोविड टाइम में हम ये 2-3 योजनाएं जो हमारी सीए विचारमंच की है वो मैक्सिमम मेंबर्स तक और लोगों तक पहुंचा पाएं. एक हमारी सीए विचारमंच की योजना है शिक्षा सहायता टू सीए एंड अदर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स. तो जो भी नीडी स्टूडेंट्स, चाहे वो शिक्षा के लिए या चिकित्सा के लिए, मेडिकल हेल्प के लिए आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है, many of the students have come under trouble during this pandemic, उनको आपको लगता है कि कहीं कोई उनको ज़रूरत है, सीए विचार मंच इस प्रोफेशन में और अलाइड प्रोफेशंस में स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनको हैंड होल्डिंग करने के लिए सदैव तत्पर है. और ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स आपकी नॉलेज में आते हैं, मेरी सभी मेंबर से गुजारिश है, ना केवल सीए कोर्स के बल्कि कंपनी सेक्रेटरी, CWA, लॉ और अदर प्रोफेशनल कोर्सेज, जो भी हमारे पास लिमिटेड मीन्स हैं, हम कुछ ना कुछ सहायता ऐसे सभी स्टूडेंट्स को करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे. बस आपके नॉलेज में कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, या तो सतीश जी को बताएं, जगजीत जी को बताएं, डायरेक्टली मुझे बताएं, या और भी कोई किसी भी माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकते हैं ऐसे लोगों को, तो हमें पहुंचाएं.
हम उनके हेल्प करने के लिए तैयार हैं। कोई भी यंग राइटर्स और स्पीकर्स अपनी प्रेजेंटेशंस, अपनी बुक्स, अपने आर्टिकल्स, अपने पब्लिकेशंस लाना चाहते हैं, हम उनको हर तरीके की टेक्निकल सपोर्ट और पब्लिकेशन सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। वी वांट कि ये लीडरशिप में और डोमेन लीडरशिप में हम नई सोच, नए लीडर्स को लेकर के आए। हमारा प्रयास है, पैंडेमिक में हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अदर प्रोफेशनल बंधु जिनकी सोल लाइवलीहुड प्रोफेशन था और जिनकी फैमिली की अर्निंग केवल उस प्रोफेशन से डिपेंड थी, उनकी लाइवलीहुड उस प्रोफेशन से होने वाली अर्निंग पे डिपेंड थी, लेकिन ड्यू टू सडन डिमाइज now they are into some financial and liquidity trouble, even though they are otherwise financially well off, but जो सडन लिक्विडिटी ट्रबल आई, एक तो पेंडेमिक और उसके बाद जो अर्निंग मेंबर हैं वो नहीं रहे। तो एक सोच हमारी तो काफ़ी पहले से ही थी कि सीनियर मेंबर्स और जो यंग मेंबर्स हैं उनका एक फ्यूज़न हो, हम इस तरीके से डेवलप करें अपने प्रोफेशन को कि आने वाले समय में या इन द टाइम ऑफ क्राइसिस डिजीज्ड मेंबर के फैमिली मेंबर्स को उनके जमाए हुए प्रोफेशन से कुछ ना कुछ रॉयल्टी मिलती रहे। वी हैव ए कंप्लीट डिजाइन विद अस। और यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जॉब में ना जाकर के प्रैक्टिस में आना चाहते हैं, वो सीनियर मेंबर्स की प्रैक्टिस को कैरी कर सकें और सीनियर मेंबर्स को ये एश्योरेंस हो कि यस, आफ्टर देयर डिमाइज उनके फैमिली को कुछ लॉयल्टी मिलती रहे। इस तरीके के प्रोग्राम्स हम डेवलप कर सकते हैं, लोगों को एश्योरेंस दे सकते हैं, उनके मेमोरेंडम्स तैयार करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं इफ़ दे रियली वांट टू कम टू द सॉल्यूशंस। और जो 30 साल, 40 साल, 50 साल का प्रोफेशन हमारे जैसे प्रोफेशनल्स एस्टेब्लिश करते हैं एक लीगेसी, लेकिन वो सडन डिमाइज से ख़त्म हो जाती है, उसके फ्रूट्स फैमिली तक नहीं पहुंच पाते हैं आगे आने वाले समय में, उसको हम एड्रेस कर सकें, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। बाकी सब कार्यवाही आप हमसे जुड़े रहें। मेरा नंबर आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है और आगे भी शेयर हो जाएगा, तो हमसे जुड़े रहें, सतीश जी से जुड़े रहें। और ऐसी कोई भी व्यवस्था आपको सहायता हमारी ज़रूरत है ऐसी व्यवस्था के लिए, तो हम तत्पर हैं। अब आज का टॉपिक है कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स कोई नया विषय नहीं है, लेकिन जो रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स आया एंड 3 वॉल्यूम्स में अप्रोक्सीमेटली 700 अप्रोक्सीमेट पेजेस हैं, 3 वॉल्यूम्स हैं। पहला वॉल्यूम है, फर्स्ट 2 वॉल्यूम्स में सारे इस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, देन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, देन इंडिपेंडेंस स्टैंडर्ड्स हैं, फिर डूज एंड डोंट्स हैं सेकंड वाले वॉल्यूम में, और थर्ड में पुराने डिसिप्लिनरी केसेस की जिस्ट है, उसमें जो आइडेंटिफाइड जजमेंट्स हैं उनको रिपोर्ट किया गया है। एंड इज ए कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट which is to be mandated to be followed by the professional accountants. 2009 में जो कोड ऑफ एथिक्स था वो बड़ा ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, और जैसा कि इसके प्रीफेस में बताया गया है, इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, कोड ऑफ एथिक्स हैं, उनके इन लाइन इसको तैयार किया गया है। हालांकि काफ़ी वॉल्यूमिनस कोड है, ऑल्दो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में ऑलरेडी शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 में डूज एंड डोंट्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं एंड दोज आर मैंडेटेड। उन सब का हमारे को अवेयरनेस है, उसको हम फॉलो भी करते रहे हैं। लेकिन ये होल पीस ऑफ लेजिस्लेशन, हमारे लिए तो लेजिस्लेशन ही है, हैज़ कम from 1st July 2020 as a mandate, as a mandatory requirement to be followed by chartered accountants in practice as well as chartered accountant in service. And even if
they are neither in practice nor in service. There are provisions which are to be followed by chartered accountants in general. तो complete है. The code of ethics is been divided into, as I have told, the volume 1 is been divided into part 1, part 2, part 3, part 4a, 4b, and the glossary of the definitions. तो part 1 में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को बताया गया है और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को बताया गया है. पार्ट 2 में प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सर्विस के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं. पार्ट 3 में प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं. और पार्ट 4A एंड पार्ट 4B में स्टैंडर्ड एथिकल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, इंडिपेंडेंस स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं. डिस्कशन जितना भी हम इसके ऊपर चाहे कर सकते हैं, बट कोड ऑफ एथिक्स और लीगल दो अलग अलग चीजें हैं. लेकिन हमने आज एथिक्स को लीगैलिटी में बांध दिया है बाय वर्च्यू ऑफ दिस कोड ऑफ एथिक्स. एथिक्स जो अब अभी तक हम समझते आए हैं, an act which is not ethical, which is not moral, but it may be illegal, may not be illegal. So कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं जो मे बी कि दे आर नॉट इलीगल, दे आर लीगली वैलिड, लेकिन वो एथिकल नहीं है. और कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं कि नहीं, कि वो एथिकली तो ठीक है और लीगली ठीक है या नहीं है, वो तो एक मैटर ऑफ कोर्ट जजमेंट है. तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब एथिक्स हैं, जिसको हम एज ए स्टैंडर्ड, एज ए प्रूडेंस, एज ए प्रोफेशनल प्रूडेंस के तौर पे करते हैं और एक प्रोफेशनल स्टैंडर्डाइजेशन के तौर पे करते हैं. अब उसको हमने एक कोड में डिफाइन कर दिया है और अब उसको फॉलो करना एक लीगल रिक्वायरमेंट भी बन गई है. इसको हमको इस तरीके से देखना चाहिए. हालांकि किसी भी प्रोफेशन का कुछ स्टैंडर्ड्स तो होते ही हैं और होने ही चाहिए. प्रोफेशन में और बिजनेस में डिफरेंस ही इस बात का है कि प्रोफेशंस आर रेगुलेटेड, प्रोफेशंस आर डिसिप्लिन्ड, प्रोफेशनल्स आर रेगुलेटेड एंड डिसिप्लिन्ड, और उनसे हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टैंडर्डाइज एथिकल बिहेवियर की. एंड बिजनेसेस में दे आर नॉट स्ट्रक्चर्ड, दे आर नॉट स्टैंडर्डाइज सो फार एज द रेगुलेशंस आर कंसर्न. They are not there is no some any bylaws or anything, but हाँ, जो अदरवाइज टोटल ओवरऑल बिजनेस लीगल फ्रेमवर्क ऑफ ए सोसाइटी या फिर कोई जो भी कंट्री का है, उसको बिजनेसेस जरूर फॉलो करते हैं. बट चाहे दिल्ली का बिजनेस हो और पंजाब का बिजनेस हो, जरूरी नहीं है उनके सेम स्टैंडर्ड्स होंगे फॉर परफॉर्मेंस. बट यस, आज अगर हम दिल्ली में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रोफेशनल अकाउंटेंट, एक पंजाब में कर रहे हैं, एक चेन्नई में कर रहे हैं, उनके अपने परफॉर्मेंस के, अपने डिलीवरी के, अपने वर्क एथिक्स के एक स्टैंडर्ड्स हैं, काम करने के स्टैंडर्ड्स हैं और काम के एग्जीक्यूशन के लिए भी स्टैंडर्ड्स हैं. लाइक हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, या और दूसरे जो स्टैंडर्ड्स हमारे को और गाइडेंस नोट्स हमारे को इंस्टीट्यूट से मिलते रहते हैं. बट देन बिजनेसेस के लिए ऐसे कोई स्ट्रक्चर्ड कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ स्टैंडर्ड्स नहीं होते. हाँ, उनको जो भी कंपनी लॉ के फ्रेमवर्क हैं, इनकम टैक्स के फ्रेमवर्क हैं, लॉ हैं, और दूसरे इंडियन पैनल कोड के जो चीज़ें हैं, या उनके ऊपर जो रिस्पेक्टिव लॉज एप्लीकेबल हैं, वो जो है वो उनके ऊपर एप्लीकेबल होते ही हैं, वो अदरवाइज प्रोफेशनल्स पे भी. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए प्रोफेशनल पर्सन एंड ए बिजनेस पर्सन, दैट professional person is bounded and is been guided by the professional standards, and in those professional standards of behavior as well as of professional standards of execution of work, now we have a code of ethics also. ऐसा नहीं है कि ये code of ethics पहले नहीं थे, लेकिन आज इनको कोडिफाई कर दिया गया. बट देन एक नए मैनर में, एक नए क्लेवर में, एक नए स्टाइल में इनको डाला गया, एंड दैट इज वी कॉल इट फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं? लेट अस स्टार्ट विद. सो क्या एथिक्स हैं, क्या लीगैलिटी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा. आप सभी लोग प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं, मॉरल वैल्यूज को समझते हैं, एथिक्स को समझते हैं, एथिकल वैल्यूज को भी समझते हैं, और लीगल लॉज को भी आप लोग समझते हैं.
तो क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कोड ऑफ एथिक्स हमें बता रहा है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो कोड ऑफ एथिक्स बता रहा है वो बता रहा है हमें इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। सो ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर टोटल हमारा ये कोड ऑफ एथिक्स बेस है। जो भी हम काम कर रहे हैं इट इज एक्सपेक्टेड दैट हम ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। चाहे हम ऑडिट और रिव्यू वर्क कर रहे हैं, हम एश्योरेंस अदर देन ऑडिट और रिव्यू कर रहे हैं, हम लीगल कंसल्टेंसी कर रहे हैं, हम टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, कुछ भी, whatever a professional accountant means chartered accountant, whether in his own practice or in service. So the terminology used in the code of ethics is professional accountant. So it is expected that they all professional accountants, all chartered accountants will follow the fundamental principles of integrity, objectivity, professional compliance, competence and due care, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के इर्द गिर्द ये सारा का सारा कोड ऑफ एथिक्स है। क्या ये बड़े शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये शब्द अपने आप में ऐसे हैं कि इनके ऊपर पूरा लेक्चर हो सकता है, बट देन मैं बहुत ब्रीफली, क्योंकि और ये शब्द आपके लिए नए नहीं है, ये शब्द हम सब पहले से जानते हैं, लेकिन जस्ट टू गिव यू क्विक लुक इसको रिफ्रेश करेंगे। इंटीग्रिटी इज टू बी मीन बाय स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड ऑनेस्टी इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। टोटल ट्रांसपेरेंसी से, ऑनेस्टी से एंड इंटीग्रिटी से हमें क्लाइंट का काम करना है। वी हैव टू बी ऑनेस्ट नॉट ओनली टू द क्लाइंट बट टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। और वो सारे स्टेक होल्डर्स कौन हो सकते हैं? वो सारे स्टेक होल्डर्स बैंकर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, टैक्स एंड रेवेन्यू अथॉरिटीज हो सकती हैं, रेगुलेटिंग अथॉरिटीज हो सकती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सकती है, और स्टेक होल्डर्स बीइंग क्रेडिटर्स ऑफ द वेंडर्स ऑफ द क्लाइंट, वो सब लोग इसमें स्टेक होल्डर है। सो हमारा वर्क ना केवल क्लाइंट के लिए ऑनेस्ट होना चाहिए, ना केवल क्लाइंट के लिए हमें इंटीग्रिटी देनी है। We are been a bridge between all the stakeholders and the enterprise. तो ये इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी हमें सबके लिए मेंटेन करनी है। दिस इज व्हाट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल। सेकंड क्या है सर? ऑब्जेक्टिविटी। व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट टू कंप्रोमाइज प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट बिकॉज ऑफ any bias or conflict or interest or undue influence। किसी भी वजह से हमारा जो प्रोफेशनल जजमेंट है वो डिफर नहीं होना चाहिए, चाहे कोई पर्सनल बायस हो, चाहे कोई फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो क्लाइंट के साथ या किसी और स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे कोई इन्फ्लुएंस आ जाए, जैसा कि हम बहुत बार देखते हैं जब हम यूजुअली बैंक ब्रांच ऑडिट के असाइनमेंट्स करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ केसेस में हमने देखा है, पाया है कि ब्रांच ऑफिशियल्स या रीजनल लेवल के ऑफिशियल्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस एंड प्रेशर करने की कोशिश करते हैं फॉर नॉट टू मेक ए जजमेंट, टू मेक समथिंग सम अकाउंट एनपीए। तो उस इन्फ्लुएंस में भी नहीं आना है। और कई बार हमें लगता है कि नहीं यार ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में, तो चलिए लेट अस डू नॉट एक्सरसाइज अवर जजमेंट इन दैट प्रूडेंस मैनर। तो ऐसी भी बड़ी सिचुएशंस आती हैं कि कुछ स्टेक होल्डर्स हमारे को कॉन्फ्लिक्ट दिखा करके जजमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, बट देन our objectivity of the work is that we will not be influenced, we will not make compromises with our professional judgment due to any bias or conflict or interest or undue pressure। तो इसको ध्यान में रखते हुए, और हमने ये देखा है कि जितने प्रूडेंस से हमारी फैटर्निटी ने
बैंक ब्रांच ऑडिट्स किए हैं, उसकी वजह से एनपीएस सामने आए हैं, उसकी वजह से रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द होल फाइनेंशियल सिस्टम होती रही है। हालांकि कुछ डिसीजंस की वजह से जो बैंकिंग में हुए कि अपॉइंटमेंट डायरेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से ये अफेक्ट भी करता है, बट देन वी आर ट्राइंग कि वो सिस्टम इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट का हो और ऑब्जेक्टिविटी वाला जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इसको हम और अच्छे से अचीव कर पाए। देन द थर्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। तो ये सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को इन्हांस करने का, हार्नेस करने का, कि हम लोग कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम को बड़े रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, डे इन एंड डे आउट नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं ऑन वेरियस इश्यूज, वेरियस डोमेन्स, वेरियस सब्जेक्ट, और अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं। दिस इज द ओनली प्रोफेशन आई एम टेलिंग यू जिसमें इतने लार्ज स्केल पे इंडिया में कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम हम चला पा रहे हैं और मेंबर्स आर इंटरेस्टेड। कॉन्फिडेंशियलिटी क्लोज क्या कहता है? टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोफेशनल एंगेजमेंट। अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो हमारे को अपने प्रोफेशनल वर्क एग्जीक्यूशन के दौरान प्राप्त हुई है, तो उसकी हमें कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है और हमको शेयर नहीं करना है। ये हम सब लोग पहले से जानते हैं। अनटिल अनलेस देयर इज ए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अंडर एनी गवर्निंग लॉ, और अदरवाइज अगर लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्लाइंट की कंसेंट के बिना हमें क्लाइंट की इंफॉर्मेशन कहीं भी शेयर करने की परमिशन नहीं है। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होती है देन दैट इज ए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो इसको हमें ध्यान में रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी। वेदर देयर इज एनी क्लॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इन एनी एंगेजमेंट और नॉट। कई बार हम एंगेजमेंट लेटर अपना जो बनाते हैं, जो अपॉइंटमेंट लेटर बनाते हैं, समटाइम्स उसमें जरूरी नहीं है कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज हो। कुछ क्लाइंट्स बड़ा इंसिस्ट करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज के ऊपर, तो इंसिस्ट करते हैं तो आप उसको क्लॉज को डालने दीजिए उन्हें, क्योंकि वो क्लॉज डले या ना डले, जो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारा कोड ऑफ एथिक्स है, वो कह रहा है हमें खुद ही कि हमें कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं करनी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हम वैसे भी नहीं कर सकते, चाहे उसमें वो क्लॉज हो या ना हो, बट यस, उस क्लॉज को जब इंसर्शन हो एंगेजमेंट लेटर में तो उसमें ध्यान रखें कि उसमें डलवा लें उनसे कि या जहां भी लॉ रिक्वायरमेंट होगी, लॉफुल रिक्वायरमेंट होगी, वहां पर ये इंफॉर्मेशन शेयर उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के साथ में हमें करनी पड़ेगी। रादर टू सेफगार्ड अवर एक्सपेंसेस हम उसमें ये भी डलवा देते हैं कि अगर आपके वजह से हमें कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है और हमें कहीं अपीयरेंस देनी पड़ती है फॉर गिविंग अवर स्टेटमेंट और एक्सप्लेन द थिंग्स, वहाँ जो हमारा खर्चा होगा दैट विल बी मेट बाय द क्लाइंट। तो इसको ध्यान में रखिए। मैं साथ साथ एंगेजमेंट लेटर्स में जब ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्लोज की चर्चा हो तो हमको अपना फ्यूचर को भी सेफगार्ड करके हमको किस तरीके से चलना है कि हमारे ऊपर वो पता चला 1 लाख रुपए का टोटल असाइनमेंट था, मैटर लग गया सीबीआई में, वहां पर आपकी अपीयरेंसेस होने लग गई हैं, पूरा का पूरा टाइम वहां जा रहा है एंड द क्लाइंट इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू गिव यू एनी रिम्बर्समेंट और फीस ऑफ योर प्रोफेशनल टाइम। तो जरूर उस तरीके के क्लोजेस जब हों तो अपने एंगेजमेंट लेटर्स में उनको जरूर डलवाएं, मेरा ऐसा आपको एडवाइस है। देन प्रोफेशनल बिहेवियर। तो प्रोफेशनल बिहेवियर, वही मैंने आपको कहा, प्रोफेशनल्स में एक स्टैंडर्डाइजेशन की मांग है। आज अगर हम एक मैकडोनल्ड में जाते हैं, एक बीकानेर वाला में जाते हैं, एक हल्दीराम में जाते हैं, व्हाट वी एक्सपेक्ट इज एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एम्बियंस होगा, एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाइजीन होगी, एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट होगा। सिमिलरली प्रोफेशनल बिहेवियर में भी एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बिहेवियर की मांग होती है। So to comply with any relevant laws and regulation and to avoid conduct that the professional accountant knows or should know might discredit the profession, this is what the code of ethics says। तो इसलिए प्रोफेशनल बिहेवियर को ध्यान में रखना है।
क्योंकि एक छोटी सी एरर, एक छोटी सी ओमिशन, एक छोटा सा मिसबिहेव हमारे पूरे के पूरे प्रोफेशन को डिसरेप्यूट में ला सकता है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है जब भी। सो दीज वर ऑल फंडामेंटल प्रिंसिपल। अब उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अडेहर करते हुए अब कोड ऑफ एथिक्स को कैसे एम्प्लॉय करना है। अब ये टोटल ओवरऑल कोड ऑफ एथिक्स किस तरीके से बेस्ड है। इस टोटल ओवरऑल कोड ऑफ एथिक्स में 5 तरीके की थ्रेट्स को अज्यूम किया गया है जब भी हम कोई प्रोफेशनल एंगेजमेंट लेते हैं। वो कौन कौन सी थ्रेट्स हैं? वो 5 तरीके की थ्रेट्स हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स की फाइनेंशियल और कोई भी अलग तरीके का इंटरेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटेंट का हो सकता है, दैट इज ए प्रोफेशनल थ्रेट। देन ए सेल्फ रिव्यू थ्रेट कि हम अपने ही किए हुए काम को, सपोज कीजिए हमने ऑडिट वेरिफिकेशंस किए एंड देन अपने ही किए हुए काम को फिर किसी और पर्टिकुलर एंगेजमेंट से फॉर टैक्स कंसल्टेंसी और फॉर रिप्रेजेंटेशन हम उसको रिव्यू कर रहे हैं, दिस इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट, इसको हम कहते हैं। देन एडवोकेसी थ्रेट कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बना दी है, फाइनल कर दी है, ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर कमेंट कर दिया है, उन्हीं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर और उनके एजम्पशंस एंड प्रेमाइसिस के ऊपर जब हमें कहीं कोर्ट ऑफ लॉ में या टैक्स अथॉरिटीज के साथ में आर्ग्यूमेंट करना है, देन इट इज सेड कि वहां पे एडवोकेसी थ्रेट्स है। मैं अभी केवल ये बात बता रहा हूं जो कि कोड ऑफ एथिक्स में है। ये थ्रेट्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में, ये तो एक मैटर ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट है। हालांकि बहुत सारे और वेरियस सर्कमस्टांसेस में कहाँ कौन सी थ्रेट्स को एज्यूम किया गया, ये कोड ऑफ एथिक्स में किया गया कि वेरियस सर्कमस्टांसेस में वेरियस थ्रेट्स को एज्यूम किया गया। उन एजम्पशंस का क्या बेस है, ये बेस कोड ऑफ एथिक्स में नहीं दिया गया और उसके ऊपर कहीं कोई गाइडिंग प्रिंसिपल भी उस तरीके से नहीं दिया गया, बट ये थ्रेट्स है, ये उसमें दिया गया है कि हाँ ऐसी ऐसी सिचुएशंस होगी तो ये थ्रेट एज्यूम है। फिर फैमिलियरिटी थ्रेट है कि हम लॉन्ग एंड वेरी क्लोज रिलेशनशिप में आ जाते हैं क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि 10 साल से क्लाइंट है, 15 साल से क्लाइंट है, 20 साल से क्लाइंट है, 25 हमने तो देखा है प्रोफेशनल्स ऐसे ऐसे हैं जो क्लाइंट्स के एंगेजमेंट की गोल्डन जुबली बना रहे हैं। जगजीत जी, अपने प्रोफेशनल करियर की गोल्डन जुबली के साथ साथ लोग क्लाइंट्स के साथ की एसोसिएशन की गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतना प्रगाढ़ हमारा क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ट्रस्ट का रिलेशनशिप बनता है। दिस इज ए प्रोफेशन ऑफ ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जी सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी आपने बहुत बढ़िया बात की है कि क्लाइंट के साथ गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली मना रहे हैं, और आई मीन इट्स अ न्यूज टू मी, बट इट्स रियली रियली वंडरफुल। मतलब सुन के ही इतना मजा आ रहा है, और जो एक्चुअली कर रहे हैं तो उनके लिए तो मतलब वाओ वाली सिचुएशन है। थैंक यू सर, थैंक जी यू। सर जी। तो बट द कोड ऑफ एथिक्स सेज कि इसमें एक फैमिलियरिटी थ्रेट आ जाती है। जब आप इतने लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में और इतने क्लोज रिलेशनशिप में बन जाते हैं तो फिर इट इज ए टेंडेंसी एंड ए ह्यूमन टेंडेंसी कि हम चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, एक ब्लाइंड फेथ करने लगते हैं, जबकि कि एक प्रोफेशनल्स को स्केप्टिकल माइंड का होना चाहिए, उसको एक शकी दिमाग का होना चाहिए। इस स्केप्टिकल माइंड एग्जैक्टली द सेम लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड फॉर द ऑडिटर। मैं अपनी तरफ से ये वर्ड नहीं लगा रहा हूं, बट देन अगर हम इतनी लॉन्ग रिलेशनशिप में है तो वहां कहा जा रहा है कि ये फैमिलियरिटी थ्रेट है। एंड देन इंटिमिडेशन थ्रेट, और ये इंटिमिडेशन थ्रेट मैंने आपको जैसे बताया कि अनड्यू प्रेशर होता है, हाई पावर लोगों का प्रेशर आता है जब आप बैंक में किसी बड़े अकाउंट को एनपीए करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि सस्टेन नहीं कर पा रहा होता है, तो फिर डेफिनेटली वी हैव सीन वेरियस केसेस जहां पे अनड्यू प्रेशर ऑन ऑल कॉर्नर्स ऑफ द ब्रांच और बैंक ऑफिशियल्स और फ्रॉम द पार्टीज आने शुरू हो जाते हैं। एंड देन समटाइम्स इतना मुश्किल हो जाता है सतीश जी कि जो ऑडिट टीम्स रिमोट लोकेशंस पे
काम कर रही होती है उनको अपनी लाइफ सेफगार्ड करने के लिए या अपने इंजरीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोबेबल इंजरीज से प्रोटेक्ट करने के लिए समटाइम्स उनको सम टेंट्रम करके वहां से निकलना पड़ता है, या वहां पर बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। ये कई बार हमारे साथ वो भी आती हैं, इंफॉर्मेशंस भी आती हैं कि हमको इस तरीके से वहां पे बहुत ज्यादा दबाव डाला गया। तो दिस इज ए इंटिमिडेशन थ्रेट, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि आप इन सारी थ्रेट्स को एड्रेस करेंगे। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क? तो मैंने 5 तरीके की थ्रेट्स आपको बताई। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट एंड इंटिमिडेशन थ्रेट। और अब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये कहता है कि किसी भी प्रोफेशनल एंगेजमेंट को लेते वक्त डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस इनमें से कोई थ्रेट्स एग्जिस्ट कर सकती है, और वेरियस सर्कमस्टांसिस दिए गए हैं कोड ऑफ एथिक्स में कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी थ्रेट एग्जिस्ट करती है। जैसा मैंने कहा कि उसका बेस मुझे बहुत जगहों पे पता नहीं चलता है कि हाँ भाई इसको पढ़ने से कि ये थ्रेट केवल एक अजम्पशन या केवल एक आइडियोलॉजिकल आइडियलिस्टिक सिचुएशन के लिए मानी जा रही है, या इसके कोई बेसिस है, रिसर्च बेस है, या कोई प्रेसिडेंसिस बेस्ड है। बट देन इट इज एक्सपेक्टेड कि हम हर सिचुएशन के लिए, हर एंगेजमेंट के लिए एक रिस्क एनालिसिस करेंगे और इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पर्टिकुलर एंगेजमेंट के लिए डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसिस एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट के लिए क्या क्या थ्रेट्स हैं। फिर आफ्टर आइडेंटिफाइंग द थ्रेट्स उसको हमें इवेल्युएट करना है कि क्या ये मटेरियल थ्रेट्स हैं, क्या इनका इम्पैक्ट मटेरियल है। अगर मटेरियल है तो फिर इसको कैसे एड्रेस करना है, और एड्रेस करने के लिए फिर सेफगार्ड्स बताए गए हैं वेरियस सिचुएशंस में कि अगर एक थ्रेट एग्जिस्ट करती है कहीं जगह, और मैक्सिमम जगह पे एजम्पशंस ली गई है कि ये थ्रेट एग्जिस्ट करती है। नाउ आपको इसकी डिग्री को इवेल्युएट करना है, आइडेंटिफाई करना है, एंड देन उसको एड्रेस करना है विद गिवन सेफगार्ड्स। और अगर वो सेफगार्ड्स कंप्लाई नहीं हो पा रहे हैं तो दैट मींस, हालांकि बहुत जगह लिखा नहीं गया है, बट यस दैट मींस कि जब सेफगार्ड नहीं हो रहे हैं तो द थ्रेट को एड्रेस करने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप उस एंगेजमेंट को छोड़ दें। तो these are the conceptual framework। तो सभी जगह थ्रेट एड्रेस हो जाएगी ऐसा नहीं है, और सेक्शन 122 बड़ा 120 की बड़ा क्लियरली कहता है when a professional accountant conclude that a situation is permitted solely because that situation is not specifically prohibited by the code, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब थ्रेट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन एड्रेस नहीं हो पा रही है, लेकिन स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड भी नहीं है सतीश जी। अच्छा, कई सारी सिचुएशंस में केवल ये फ्रेमवर्क दिया हुआ है कि यस थ्रेट एग्जिस्ट करती है, इसकी इवैल्यूएशन आप कर लीजिए और इसको एड्रेस करने के लिए ये सेफगार्ड्स हैं, लेकिन कहीं पर भी उसको लिख करके प्रोहिबिट नहीं किया गया। ये तो कहा गया कि ये सेफगार्ड्स लेने हैं, लेकिन ये नहीं कहा गया कि सेफगार्ड्स अगर नहीं ले पा रहे हैं आप तो ये अपने आप प्रोहिबिटेड हो गई ये एंगेजमेंट। ऐसा बहुत सारी सिचुएशंस में नहीं कहा गया, कुछ सिचुएशंस में कहा गया। तो लेकिन उसका मीनिंग हम ये नहीं निकाल सकते कि अगर वहां स्पेसिफिकली प्रोहिबिट नहीं किया गया तो वो परमिटेड है। एंड दैट इज व्हाट सेक्शन 120 सेज कि टू कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल if there it doesn't says that it is it is prohibited, that doesn't means कि ये permitted activity है या permitted engagement है और हम इसको कर सकते हैं। तो जहां भी safeguard build नहीं हो सकते, obviously by virtue of this 120 that engagement cannot be done by a professional accountant।
सो सर, आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स में मैंने आपको बताया 5 तरीके की थ्रेट्स हैं। नाउ उनका इवैल्यूएशन कैसे करना है। तो इवैल्यूएशन जब हम करने लगते हैं थ्रेट्स को, तो रिस्क एनालिसिस हम सब जानते हैं, ऑडिट में हम करते रहे हैं। एक्सेप्टेबल लेवल है कि थ्रेट्स के रिस्क को हम देखें कि क्या ये थ्रेट हमारे एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल में है। एक थर्ड पार्टी टेस्ट उसमें हम करते हैं, थर्ड पार्टीज की ओपिनियन लिए जा सकती है। उनके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को एनालाइज किया जा सकता है। एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशंस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स किसी भी एंटरप्राइजेस में किस तरीके की हैं, उस तरीके की थ्रेट्स को एड्रेस करने के लिए। किसी भी एंटरप्राइजेस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लेवल कंप्लायंस स्टाफ का क्या है। से सपोज कि टैक्सेशन स्टाफ है जो कि टैक्सेशन मैटर्स को डील करता है, लेकिन उनको टैक्स की ना तो प्रॉपर नॉलेज है, ना प्रॉपर एजुकेशन है, ना प्रॉपर ट्रेनिंग ही है। तो जीएसटी में ये प्रॉब्लम बहुत आई सतीश जी। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया। हाँ जी जो सर। पुराने लोग सर्विस टैक्स या वैट एंटरप्राइजेस के यहाँ पे वर्क कर रहे थे, वही लोग अल्टीमेटली जीएसटी को करने लग गए। सर्विस टैक्स और वैट, इनकी तो नॉलेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से या धीरे धीरे नॉलेज एक्वायर करने से थोड़ी बहुत हो गई थी। लेकिन जीएसटी में ऑल टुगेदर पैराडिगम शिफ्ट हो गया और उन्होंने लगा कि सर्विस टैक्स और वैट से ही है तो चलिए हो जाएगा। और उन स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं हुई, प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं हुई, और जो इनिशियल एरर्स एंड ओमिशंस हुई उसके बाद वो हम सबके सामने है। प्रोफेशनल्स ने बहुत ट्रेनिंग्स की, बहुत वर्कशॉप्स की, बहुत कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि उतनी ट्रेनिंग ना तो डिपार्टमेंट में दिखाई दी, ना दूसरे पार्ट ऑफ द अकाउंटेंट्स जो लोग फील्ड फॉर्मेशंस हैंडल कर रही थी, क्लाइंट के बेसिस पे जो अकाउंटेंट वर्क कर रहे थे, उनके अंदर में उस तरीके की ट्रेनिंग उनको नहीं इम्पार्ट की गई। तो इसकी वजह से बहुत सारी एरर ओमिशन हुई जो कि अल्टीमेटली कारण बनी नोटिस का, इंक्वायरीज का, सस्पेंशन का, कैंसिलेशन का। तो ये एक बड़ी थ्रेट है, इसकी इवैल्यूएशन करनी जरूरी है। जी सतीश जी, आप कुछ कह रहे थे। सर ये थ्रेट तो हमेशा से रही है, आप एजेस से देख लीजिए। और कभी भी कुछ भी कोई भी नया लॉ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, लेके आती है नया, वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड द फ्रेटर्निटी और हमारा इंस्टीट्यूट सब लग के स्टडी सर्कल्स के माध्यम से, ब्रांचेस के माध्यम से और अपने रीजनल काउंसिल्स के माध्यम से बहुत सारी वेबिनार, सेमिनार्स, और हम लोग पूरा अपना डे एंड नाइट उसको समझने में लगते हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर लॉ, और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, और कैसे अपना ऑडिट फ्रेमवर्क में और डिफरेंट असाइनमेंट्स जो हम लोग करते हैं, कैसे उसको एडजस्ट करें ताकि कुछ भी क्लाइंट का लॉस ना हो, और जो भी बैलेंस शीट्स फाइनलाइज हो या और भी जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, सब कुछ लॉ को नजर में रखते हुए सब कुछ निपट जाए। वेयरएज जो उनकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज हैं, एक्चुअल इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज हैं, जैसे जीएसटी के केस में आपने राइटली बताया, जीएसटी अथॉरिटीज, डिफरेंट जो हमारे ऑफिसर्स हैं, प्रॉपर ऑफिसर्स हैं, या इवन कमिश्नर लेवल, एडिशनल कमिश्नर लेवल, उनको उतनी ट्रेनिंग ना तो होती है, या अगर होती है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर रही, गवर्नमेंट उसको लेक्चर्स दिलवा नहीं रही या ट्रेनिंग के लिए भेज नहीं रही, पर जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेते जो गवर्नमेंट मशीनरी के जो स्टाफ्स हैं। रिजल्ट वही होता है, अल्टीमेटली वी प्रोफेशनल्स एंड फाइनल अल्टीमेटली द क्लाइंट्स यही सफर करते हैं। तो एक बहुत बड़ा थ्रेट है, इसको कैसे मिटिगेट किया जाए, ये आप लोग प्लीज जरा हाईलाइट करें और देखें इसको कैसे हो सकता है। यस सतीश जी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि एक तो डेफिनेटली एफर्ट्स भी कम है डिपार्टमेंटल लेवल पे, और जितने एफर्ट्स हैं भी तो जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं उनकी विलिंगनेस नहीं है अपने आप को अपडेट इन टाइमली मैनर करने की, बिकॉज उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, उनके पास 3 साल का 5 साल का टाइम है किसी भी इशू के ऊपर शोकाज नोटिस देने के लिए या ऑर्डर करने के लिए। तो दे वेट एंड वॉच की चलिए एरर हो रही है, होती रहेगी, जब हम अल्टीमेटली एक्शन लेना होगा
then we would be doing that action. तो वो सारी चीजें हैं, उसको रिमूव करने के लिए एक हार्मोनियस रिलेशनशिप हमारे को डिपार्टमेंट्स के साथ में भी मेंटेन करना चाहिए इंस्टीट्यूशनल लेवल मुझे पे। लगता है कहीं विलिंगनेस भी नहीं है। हाँ, विलिंगनेस फील्ड फॉर्मेशन की नहीं रहती है, ये हमने देखा है बहुत ज्यादा। तो इसको हमें ध्यान में रखते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल अपने आप को तो प्रिपेयर करें, और फिर क्लाइंट के लेवल पे जो थ्रेट्स हैं हमें उसको एड्रेस करते हुए अपने जो वेरिफिकेशन मॉड्यूल्स हैं, अपने जो एविडेंसेस हैं, अपने जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उसको उन्हीं तरीके से इम्प्रोवाइज करें और जो भी सेफगार्ड्स बताए गए हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। बहुत बड़ा ये चीजें हैं। मैं कुछ चीजों के ऊपर टच अपॉन करूंगा कि बहुत सारी चीजों में मैं कुछ चीजों के ऊपर टच अपॉन करूंगा जो कोड ऑफ एथिक्स में दी गई हैं, और कई बार बहुत सारी चीजें कहीं रियलिस्टिक भी लगती हैं, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको कि मैं टच अपॉन करना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि इसमें हम किस तरीके से कहीं ट्रैप ना हो जाएं, और उसका ध्यान आप सब लोग रखें। तो प्रोविजंस हैं कई सारे, क्लाइंट एंगेजमेंट एंड एक्सेप्टेंस। तो अगर आप कोई नया अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, देन इट इज बीन मैंडेटेड इन द एक्ट ऑल्सो कि आप जो प्रीवियस ऑडिटर हैं उनके साथ में कम्युनिकेट करें, और कम्युनिकेशंस के लिए कहीं कहीं ये भी जरूरी हो सकता है कि यस, कि आपको अप्रूवल लेनी पड़े क्लाइंट की, डिपेंडिंग अपॉन योर नेचर ऑफ वर्क। तो यस, क्लाइंट की अप्रूवल भी लेनी पड़ती है, इवन देन उसको कम्युनिकेट करके हमें प्रीवियस अकाउंटेंट को कम्युनिकेट करना है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथ क्रिएट है, ऑलरेडी ये मैटर हमारा कवर्ड है हमारे प्रोफेशनल कंडक्ट के शेड्यूल में, एक्ट के अंदर, लेकिन लोगों को एक बहुत बड़ा हमारी फैटर्निटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है या मिथ है कि प्रीवियस अकाउंटेंट से, प्रीवियस ऑडिटर से नो ऑब्जेक्शन आना चाहिए। तो मैं यहाँ आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि प्रीवियस ऑडिटर के साथ में केवल कम्युनिकेशन करना जरूरी है। वहां से कोई फीडबैक आता है, उसके ऊपर आपको डिपेंड करता है कि आप उस नए एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करें या ना करें। हाँ, लेकिन वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस आना ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। सो द प्रीवियस ऑडिटर मे कम्युनिकेट इन रिस्पॉन्स टू योर कम्युनिकेशन और मे नॉट कम्युनिकेट टू यू इन रिस्पॉन्स टू योर कम्युनिकेशन, बट देन एक रीजनेबल टाइम उसको दिया जाना चाहिए। और जो भी ऑब्जर्वेशंस या कमेंट्स प्रीवियस ऑडिटर या कोई भी इंफॉर्मेशन प्रीवियस ऑडिटर आप इनकमिंग ऑडिटर के साथ में शेयर करना चाहता है, तो वो उसको एवेल्युएट करे कि क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जिसका कि उसके एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी रिपोर्टिंग को एड्रेस करे। लेकिन केवल ये कह देना, मैंने कई जगह सतीश जी देखा है कि नहीं, वो कई सारे कम्युनिकेशंस जब प्रीवियस ऑडिटर से आते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें वो लिखते हैं और वो कहते हैं कि क्योंकि ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं तो आप ये ऑडिट नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है, बस हाँ, जितनी भी बातें उन्होंने लिखी हैं उन सबको आपको इवेल्युएट करके उनको एड्रेस जरूर करना है व्हाइल यू आर फाइनलाइजिंग और कमेंटिंग अपॉन योर कमेंटिंग अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बात जरूर ध्यान रखनी है। लेकिन इसके साथ में एक और, कोई भी अनडिस्प्यूटेड फीस अगर प्रीवियस ऑडिटर की पेंडिंग है तो वो पहले सेटल होनी चाहिए। उसके सेटल होने से पहले आप नया अपॉइंटमेंट नहीं एक्सेप्ट कर सकते। अनडिस्प्यूटेड का मतलब है कि जो फीस एग्रीड अपॉन हो गई, ऑडिट की फीस, नॉट फॉर अदर वर्क, ऑडिट में फिर वो चाहे टैक्स ऑडिट की फीस हो, चाहे और किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऑडिट की फीस हो, चाहे स्टैट्यूटरी ऑडिट की फीस हो, इट इज रिलेटेड टू ऑडिट फीस ओनली। और ऑडिट फीस उनकी प्रीवियस ऑडिटर की पे ऑफ होनी चाहिए। और अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस का क्या मतलब है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो गई
and that financial statement is signed by the auditee and the auditor, तो that means that is an undisputed fees. तो इसको जरूर ध्यान में रखें. कई सारे केसेस अभी रिसेंटली हमारे पास आए हैं जिसमें ऑडिटर, new auditor has accepted the engagement and even signed the and submitted the report even though the previous auditor's fees was not paid. तो ये एक ग्रोस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, इसको ध्यान में रखें. एक और क्लोज है, क्लोज एक सेक्शन 321 सेकंड ओपिनियन के लिए. अगर कोई मैटर में एक पर्टिकुलर ओपिनियन ली गई है लेकिन आप उससे कंकर नहीं करते और एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, बट देन वन हैज टू टेक द परमिशन ऑफ द क्लाइंट कि मुझे इसमें सेकंड ओपिनियन लेनी है, एंड देन ओनली द सेकंड ओपिनियन कैन बी टेकन, अदरवाइज दैट without permission of the client one cannot take the second opinion. Now fees and remuneration के समय में कि क्या under lowering the fees is a professional misconduct. Say suppose previous auditor एक फीस ले रहे थे 1 लाख रुपए और जो न्यू ऑडिटर हैं वो सपोज कीजिए कि उस असाइनमेंट को 50,000 रुपीज में या 75,000 रुपीज में उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करते हैं. तो whether this is a professional misconduct, then the code of ethics says no, this is not a professional misconduct, लेकिन उसकी सब्सटेंशिएबिलिटी होनी चाहिए. उस सब्सटेंशिएबिलिटी के क्या मानदंड है वो भी उसमें नहीं बताए गए हैं. नेक्स्ट, क्या कॉन्टिंजेंट फीस हो सकती है? देन द कोड ऑफ एथिक्स सेज, और हमारा पहले ही एक्ट भी ये कह रहा है कि फीस कॉन्टिंजेंट नहीं हो सकती कि ऑन दी happening or of a favorable result, on the outcome of a favorable result, कि आप अगर किसी ओपिनियन में या किसी एक बार फेवरेबल ओपिनियन देंगे तो 1 लाख रुपए फीस होगी और फेवरेबल ओपिनियन जो क्लाइंट चाहता है वो नहीं देंगे तो 25,000 रुपए फीस होगी या फीस नहीं मिलेगी. या फिर अगर अपील का मैटर कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन का मैटर कर रहे हैं, ऑर्डर फेवर में आ गया तो फीस मिलेगी और ऑर्डर फेवर में नहीं आया तो फीस नहीं मिलेगी. रिफंड के मैटर्स में अगर रिफंड मैच्योर हो गया तो फीस मिलेगी और रिफंड मैच्योर नहीं हुआ तो फीस नहीं मिलेगी. तो इस तरीके की जो कॉन्टिंजेंट फीस है और इस तरीके के एंगेजमेंट में आना और एंगेजमेंट में इस तरीके की टर्म्स को रखना, ये अपने आप में एक ब्रीच ऑफ कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है. कुछ सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं जहां पर की कॉन्टिंजेंट फीस हो सकती है, जहां पर की रिकवरी का असाइनमेंट हो, जहां पर की तो ये कुछ केवल और केवल जहां पर वैल्यूएशन से रिलेटेड इश्यूज हैं तो टोटल वैल्यू ऑफ द असेट्स के बेस के ऊपर कोई आपकी फीस हो सकती है. बट अदरवाइज एज ए थंब रूल फीस, एनी कॉन्टिंजेंट फीस इज नॉट अलाउड. रेफरल फीस, यस, कोई भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट फीस और प्रॉफिट दोनों ही चीजों में अदर प्रोफेशनल्स के साथ में, चाहे वो प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या वो प्रोफेशनल दूसरे अदर सिमिलर प्रोफेशंस हैं जो स्पेसिफाइड प्रोफेशंस हैं, उनके साथ में कोई भी फीस शेयर कर सकते हैं. तो वो फीस के तौर पे भी शेयर कर सकते हैं और टोटल असाइनमेंट के प्रॉफिट के तौर पे भी शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं. इवन द एक्ट परमिट्स कि आप अपने पार्टनर्स, अपने रिटायर्ड पार्टनर्स, अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिटायर्ड पार्टनर और द डिमाइज्ड पार्टनर के साथ भी फीस शेयर कर सकते हैं. बट कोई भी एम्प्लॉय अपने एंटरप्राइजेस के, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट एम्प्लॉय, से सपोज एबीसी एंटरप्राइजेस में एक सीएफओ है, उस एबीसी एंटरप्राइजेस में एक ऑडिटर है, एक टैक्स कंसल्टेंट है, एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो उन लोगों को अपॉइंट कराने के लिए वो सीएफओ या उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज उस प्रोफेशनल अकाउंटेंट से फीस शेयर नहीं कर सकते. कि से सपोज सीएफओ साहब कहें कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, लुक, अगर आप इस फर्म का ऑडिट, इस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो देखिए आपकी जो फीस डिसाइड होगी उसकी 20% या उसमें से 2 लाख रुपए मैं लूंगा और ये फीस परमिटेड है. नो, एम्प्लॉय के जो भी रिलेटेड एसोसिएटेड कंसल्टेंट्स प्रोफेशनल्स हैं
उनके साथ में, एम्प्लॉयर के किसी भी एसोसिएट के साथ में, कस्टमर के साथ में, कस्टमर के रिलेटेड मैटर में या किसी भी मैटर में कोई भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट फीस शेयर नहीं कर सकते। अदर केसेस में कर सकते हैं। आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरी कंपनी के किसी टैक्स एक्सपर्ट के साथ आप फीस शेयर कर सकते हैं जब आप उसमें कहीं असिस्टेंस कर रहे हैं या कहीं कोई उसमें और किसी तरीके की सपोर्ट कर रहे हैं। किसी भी तरीके की गिफ्ट और हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट द जर्नल कर्टसीज ऑफ रिफ्रेशमेंट एटसेट्रा, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स अपने किसी भी क्लाइंट के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दैट माइट क्रिएट ए थ्रेट डिपेंडिंग अपॉन द एंगेजमेंट साइज, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, डिपेंडिंग अपॉन द वर्कफोर्स रिक्वायर्ड। उसमें एक जो नॉर्मल गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटीज हैं, एक्सेप्ट दोज, कोई भी और इंड्यूसमेंट्स अगर है तो दैट माइट क्रिएट ए थ्रेट। दिस इज व्हाट द कोड ऑफ एथिक्स है। तो इंड्यूसमेंट डायरेक्टली क्लाइंट के थ्रू भी आ सकता है या क्लाइंट के एसोसिएट्स या रिलेटेड लोगों के थ्रू भी आ सकता है। दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो ये ध्यान रखना है कि अगर क्लाइंट के रिलेटेड लोगों के साथ, एसोसिएट्स के थ्रू, एम्प्लॉयज के थ्रू या किसी के भी थ्रू अगर कोई भी इंड्यूसमेंट्स आते हैं तो उनको आपको निगेट करना है, उनको एक्सेप्ट नहीं करना है, और केवल नॉर्मल कर्टसीज को ही हमें एक्सेप्ट कर सकते हैं। कस्टडी ऑफ द क्लाइंट एसेट्स के रिगार्डिंग में क्या कोड ऑफ एथिक्स और एक्ट कहता है? क्लाइंट की किसी भी एसेट्स को अनटिल अनलेस स्पेसिफिकली परमिटेड बाय एनी लॉ हम नहीं रख सकते। क्लाइंट की कोई भी एसेट्स को अपनी कस्टडी में रखने के लिए, वेदर इट इज लिक्विड एसेट्स और इट इज इलिक्विड और इमूवेबल और मूवेबल एसेट्स गुड्स के तौर पे, पहले ये इंक्वायरी करनी है कि इस एसेट्स का सोर्स ऑफ फंड क्या है, इसका सोर्स क्या है, कि ये कहाँ से इमर्ज हुई हैं ये एसेट्स, और फिर वो लॉफुली परमिटेड होनी चाहिए एज ए कस्टोडियन, देन ओनली वन कैन कीप। और फिर उसको एक सेपरेट उसका सिस्टम होना चाहिए कस्टडी में रखने का, अदरवाइज क्लाइंट की एसेट्स नहीं रख सकते हैं। क्लाइंट से आने वाली मनी जो वेरियस वर्क के लिए आती है उसको भी इमीडिएटली उस काम के लिए यूज करना है। क्लाइंट्स के फंड्स जो आपके पास किसी भी वजह से टू मीट द फ्यूचर ऑब्लिगेशन और कॉन्टिजेंट ऑब्लिगेशंस अगर आ रहे हैं तो उनको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है। आई एम नॉट सेइंग एंड ऑल्दो सम ऑफ द एक्सपर्ट सेज कि आपको जितना भी क्लाइंट से कोई भी एक्सपेंडिचर्स आते हैं, इवन फॉर टैक्स पर्पजेज या आरओसी की फीसिस वगैरह के लिए, उनको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है। बट यस, मेरे माइंड से ऐसा नहीं है। आपको उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग से अकाउंट फॉर करना है। अगर वो आपके सेम बैंक अकाउंट में भी है, इवन देन इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट देन, और वो इंटरमिटेंट मैनर में वो यूज हो जाने चाहिए पैसे। लेकिन उसके अलावा कोई और फंड आता है तो पहले तो वो प्रोहिबिटेड है, उसको आप ले ही नहीं सकते। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया हुआ है देन दैट हैज टू बी केप्ट इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट, और वो उसकी फिर जो इंक्वायरी और वो जो सारी चीजें हैं वो आपको करनी है कि इसका सोर्स ऑफ फंड वगैरह क्या है और इसका अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट क्या है इस फंड को आपके पास रिसीव करने के लिए। सो नाउ then there is one clause, overdue fees clause। अगर कोई भी लॉन्ग ओवरड्यू फीस है आपकी किसी भी ऑडिट क्लाइंट के साथ में, दैट माइट क्रिएट ए थ्रेट। तो अगर सब्सटेंटिव फीस आपकी पेंडिंग है मार्च 2020 के ऑडिट की, तो ध्यान रखिए कि मार्च 21 का ऑडिट करते वक्त वो सब्सटेंटिव फीस रिलीज हो चुकी होनी चाहिए, रिसीव हो चुकी होनी चाहिए। Otherwise that would be treated as a threat and that would be a misconduct। तो सब्सटेंटिव की डेफिनेशन नहीं दी गई है, whether 10% would be substantive और 15% would be substantive, और
100% और 75% वुड बी सब्सटेंटिव, कुछ कह रहे हैं 50% से ज़्यादा है तो सब्सटेंटिव है, कुछ कह रहे हैं 50% से 15% से ज़्यादा है तो सब्सटेंटिव है। लेकिन यहाँ पर इस क्लॉज के लिए क्या सब्सटेंटिविटी यूज होगी, ऐसा कहीं क्लॉज में दिया नहीं गया। फर्दर, जो कोविड लाइक सिचुएशन पिछले 1.5 साल से प्रिवेल कर रही हैं, ऐसे केसेस में अगर किसी क्लाइंट के पास वाकई लिक्विडिटी प्रॉब्लम है तो क्या वहां पर भी ये क्लोज एप्लीकेबल होगा, इसके ऊपर भी अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन काउंसिल से नहीं आई है। आई एक्सपेक्ट कि इस क्लोज के ऊपर क्लैरिफिकेशन आ जाए, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर्स एंड बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अभी लिक्विडिटी क्रंच में एंड दे आर नॉट एबल टू पे द फीसेस, बट देन इस तरीके के केसेस में उनको सर्विसेज डिनाई नहीं की जा पा रही हैं। तो और दूसरा भी, अगर सर्विसेज डिनाई भी कर देंगे, इवन देन न्यू पर्सन कैन नॉट डू द ऑडिट अंटिल लेट द अनडिस्प्यूटेड फीस इज बीन पेड। तो ऐसे केस में दिस वुड बी ए ड्यू वेरी वेरी बिग हार्डशिप टू द क्लाइंट, जिनके पास जो अभी ऑलरेडी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। काउंसिल से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर गाइडलाइंस दें, पर्टिकुलरली इन दिस कोविड लाइक सिचुएशन, कि इस क्लॉज, इस वाले जो क्लॉज है ओवरड्यू फीस क्लॉज, इसको हमको इस कोविड सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल करना है डेफिनेटली। सो दीज वर सम जर्नल क्लॉजेस जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे क्लॉजेस डिस्कस करना चाहूँगा जिसका कि इन माय व्यू इट्स अ वेरी सीवियर इम्पैक्ट ऑन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। हो सकता है लार्ज एंटरप्राइजेस के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट हो, पर वो मुझे दिखाई नहीं देता, बट बहुत ही सीवियर इम्पैक्ट है इन क्लॉजेस का स्मॉल एंड मीडियम के ऊपर। तो लेट अस अंडरस्टैंड ऐसे कौन से क्लॉजेस हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। ऑल्दो ये क्लॉजेस वो हैं जो हमारे पर्टिकुलरली प्रोटेस्ट के बाद अभी डेफर कर दिए गए हैं, और पहले डेफर कर दिए गए 1 जुलाई 2020 से ये एप्लीकेबल होने वाले थे, फिर इनको डेफर कर दिया गया, उसमें टाइम नहीं बताया था कि कितना डेफर है, लेकिन अब उसको 1 अप्रैल 2022 तक के लिए डेफर कर दिया गया है उनकी एप्लीकेबिलिटी। लेकिन मेरी डिमांड है काउंसिल से कि इनको विड्रॉ किया जाए, एंड दीज आर स्ट्रिंजेंट एंड ड्रैकोनियन प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, ऐसा मेरा उनके साथ में प्रोटेस्ट है। और लेट अस डिस्कस, और आप हम इसको समझते हैं कि क्या ये क्लॉजेज इम्प्लीमेंटेबल हैं, क्या ऐसे क्लॉजेज में रियली थ्रेट है, या ऐसे क्लॉजेज में जहां इतनी एक्सपेक्टेशंस की गई हैं एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट से, क्या वो जस्टिफाइड है। तो सबसे पहला क्लॉज है सेक्शन 260 एंड सेक्शन 360, दैट इज ए नो क्लार क्लॉज। नो क्लार क्लॉज क्या कहता है सर? आई रिक्वेस्ट द अटेंशन ऑफ ऑल द लर्नेड पार्टिसिपेंट्स ऑन दीज क्लॉजेस। नो क्लार क्लॉज क्या कहता है सर? नो क्लार मीन्स व्हाट? नो क्लार मीन्स नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस or suspected non-compliance with laws and regulations of listed companies or public interest enterprises। तो दो तरीके के नॉन कंप्लायंसेस हैं जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, या जो डायरेक्टली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं, बट देन वो फंडामेंटल है टू द ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स और उनको इंपैक्ट कर रहे हैं। और अल्टीमेटली जब ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स को इंपैक्ट करेंगे तो उसका जो इंपैक्ट है वो अल्टीमेटली आने वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, उसके टर्नओवर्स पे, उसके प्रॉफिट एंड लॉस पे आएगा ही आएगा। क्या क्या लॉज हैं? पहले तो क्लॉज क्या है ये करें। क्लॉज ये कहता है कि जो भी ऑडिटर हैं लिस्टेड कंपनीज के या पब्लिक इंटरेस्ट एंटरप्राइजेस के, वो इन नॉन कंप्लायंसेस का या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंसेस का रिपोर्टिंग करेंगे उन रेगुलेटरी अथॉरिटीज को जो कि उस एंटरप्राइज के ऊपर एप्लीकेबल है फॉर द नॉन कंप्लायंसेस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंसेस, जो उन ऑडिटर को ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर वर्क वो उनके नॉलेज में आए हैं। और सिमिलर
ऑब्लिगेशन दिया गया है एम्प्लॉइज ऑफ लिस्टेड कंपनीज एंड पब्लिक इंटरेस्ट एंटरप्राइजेस के ऊपर भी, कि वो भी ऐसी चीजों को रिपोर्ट करेंगे जो इस डोमेन में आए हैं, जो नॉन कंप्लायंसेस है। और रिपोर्ट किसको करना है? अपनी ऑडिट रिपोर्ट में नहीं रिपोर्ट करना है, या केवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट नहीं करना है, रिपोर्ट करना है उस रेगुलेटिंग अथॉरिटी को जिसके की एक्ट का, जिसके लॉज का नॉन कंप्लायंस हुआ है। से सपोज कीजिए कि कोई रियल एस्टेट की कंपनी है और वो रेरा में से बाइंडिंग है, और रियल एस्टेट में कोई रेरा के लॉज का कोई नॉन कंप्लायंस हो गया है, या सस्पिशियस है कि ये नॉन कंप्लायंस हो रहा है, then the professional accountant is required, whether he is employee or he is a auditor, उसको ये नॉन कंप्लायंस ना अपनी ऑडिट रिपोर्ट में नहीं, अपने रेगुलेटिंग अथॉरिटी रेरा को रिपोर्ट करना है। सिमिलरली अगर पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड कोई नॉन कंप्लायंस या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है, वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को करना है। लेबर लॉ से रिलेटेड कोई नॉन कंप्लायंस है, वो लेबर कमिश्नरेट को करना है। कोई फ्रॉड या और दूसरे का फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट है, तो फिर वो इट मे बी रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड टू द आरबीआई और द अदर रेगुलेटिंग अथॉरिटीज। तो कौन कौन से तरीके के ऐसे रेलिवेंट लॉज जो एग्जांपल के तौर पे कोड ऑफ एथिक्स में दिए गए हैं, जिसके की ऊपर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को रिपोर्ट करना है, अगर वो उसकी नॉलेज में आते हैं, तो वो कौन से हैं सर? फ्रॉड, करप्शन और ब्राइबरी रिलेटेड लॉस, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, इससे रिलेटेड लॉस, सिक्योरिटी मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड लॉस, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड लॉस, डाटा प्रोटेक्शन, साइबर क्राइम से रिलेटेड लॉस, टैक्स एंड पेंशन से रिलेटेड लॉस, एनवायरमेंटल प्रोडक्शन से रिलेटेड लॉस, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड लॉस। तो ये इलस्ट्रेशंस हैं, खाली ये केवल इलस्ट्रेटिव लॉज हैं। अगर कोई भी और एप्लीकेबल लॉ से सपोज, जैसा कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है जगजीत जी, कि कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसके ऊपर कम से कम 50 लॉज लग रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा प्ले क्या है जगजीत भाई, कि आपको नॉन कंप्लायंस एंड सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस दोनों रिपोर्ट करने हैं। अब आपने एक सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट कर दिया, तो क्लाइंट विल बी आफ्टर योर हेड कि आपने मेरा कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर दिया, और आप सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस को रिपोर्ट नहीं कर पाए, और अल्टीमेटली पता चला ये नॉन कंप्लायंस था, देन रेगुलेटरी अथॉरिटी विल बी आफ्टर योर हेड कि भाई आपको ये रिपोर्ट करना चाहिए था मुझे, और आपने मुझे ये रिपोर्ट नहीं किया, तो दिस इज ए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। दोनों लोग एक ही मैटर के लिए रिपोर्टिंग पे, क्लाइंट आपको इंस्टीट्यूट में डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म में ले जाएगा और रेगुलेटरी अथॉरिटी नॉन उसमें ले जाएगी। अब आप फंस गए हैं दोनों के बीच में, और वो भी उन डोमेन्स पे जो हमारे डोमेन नहीं है। तो दिस इज इन माय व्यू एक्सपेक्टिंग मून फ्रॉम ए लिटिल फ्लाई, कि हम टैक्स के, ऑडिट के, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के डोमेन में काम कर रहे हैं, हम पॉल्यूशन कंट्रोल के डोमेन में काम नहीं कर रहे हैं, हम रेरा के डोमेन में काम नहीं कर रहे हैं। अगर रादर होना ये चाहिए था कि क्लाइंट एक कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करे हमें, और वो इनके इंस्पेक्टर्स, जो इतनी सारी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज हैं, हर रेगुलेटिंग अथॉरिटी में जगजीत जी एक इंस्पेक्शन होता है, वो इंस्पेक्टर के ऊपर रादर ऑब्लिगेशन होना चाहिए था कि वो अपनी अपनी रिपोर्ट ऑडिटर्स को डायरेक्टली सबमिट करें। लाइक हम एक थर्ड पार्टी कंफर्मेशन की बात करते हैं, कि हम जब अपने वेंडर कंफर्मेशन करने लगे क्लाइंट से, तो हम एक थर्ड पार्टी कंफर्मेशन मंगाएं। तो जितने भी ये लॉज हैं, इन सब में रादर गवर्नमेंट को अमेंडमेंट करनी चाहिए कि इन सबके जो इंस्पेक्टर्स हैं, वो जब अपनी रिपोर्ट, कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करें, इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट करें, और उनको लगता है कि एंटरप्राइज ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिससे कि उसके ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स पे दिक्कत है,
तो वो उसकी रिपोर्टिंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर को करे। क्लोज तो ऐसा आना चाहिए था, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स में क्लोज ले आए हम दूसरा, और हम पूरी दुनिया के इन्फॉर्मर अपने आप को अपना एक हमने अपने ऊपर ये ओढ़ लिया कि पूरे गवर्नमेंट एजेंसीज को, रेगुलेटिंग एजेंसीज को हम इन्फॉर्म करेंगे, वेदर वी आर बीन पेड बाय फॉर इट और नॉट। क्या कोई एजेंसीज हमें इसके लिए फीस पे कर रही, क्या हमारे स्कोप में जो इसकी एनलार्जमेंट होगी। और उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा वर्ड लिख दिया कि विच हैज कम टू योर नोटिस। तो अथॉरिटी तो कहेगी कि आपकी नोटिस में आना ही चाहिए था, आया कैसे नहीं, वेयर यू हैव लैक्ड। अगर आपके नोटिस में नहीं आया, इसका मतलब आपने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, आपने ग्रॉस नेग्लिजेंस की है। देन वो ग्रॉस नेग्लिजेंस का मैटर एक और लग जाएगा। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि जितनी रिवेन्यू अथॉरिटीज हैं, जितने पब्लिक सर्वेंट हैं, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, वो सब अपने पर्सनल्स के लिए इम्यूनिटी की डिमांड करते हैं और इम्यूनिटी के लॉ बन रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारी ही काउंसिल ने अपने ही मेंबर्स के ऊपर एक ऐसे लॉ को लाद दिया है जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है एक छोटे से बच्चे से कि वो पूरी दुनिया का एनसाइक्लोपीडिया बन जाए। ये किस तरीके का ऑब्लिगेशन हमने अपने मेंबर्स के ऊपर डाल दिया, ये बहुत स्ट्रिंजेंट है। मैं बार बार काउंसिल मेंबर्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको कंसीडर करो और इसको तुरंत विड्रॉ किया जाए। रादर ऑब्लिगेशन सारे इंस्पेक्टर्स के ऊपर होना चाहिए, जो मैंने कहा कि वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर, क्योंकि हम एक सिंगल एजेंसी हैं, वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिपोर्ट करें इन एडिशन टू देयर डिपार्टमेंटल रिपोर्टिंग। वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिपोर्ट करें कि लुक, इन्होंने ये रेरा का मिस नॉन कंप्लायंस किया है, इसकी वजह से, या इन्होंने इस फैक्ट्री ने ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नॉन कंप्लायंस किया और इसकी वजह से 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए फैक्ट्री बंद की जा सकती है। तो ऑडिटर उसको अपनी रिपोर्टिंग करते हुए ध्यान में रखे कि गोइंग कंसर्न तो इंपैक्ट नहीं हो जाएगा। तो दिस इज आस्किंग फॉर द स्काई। मैं सतीश जी को भी कहूंगा कि सतीश जी, इसके ऊपर जब भी आपका कभी काउंसिल मेंबर से चर्चा हो तो जरूर उनके इसमें लाएं। हाँ सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, आपकी बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि एक छोटे से चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये उम्मीद की जाती है कि वो दुनिया जहान के सारे लॉज, सारे स्टैट्यूट की जानकारी रखता है। और दूसरी तरफ अगर गौर करें, स्पेशलाइजेशन की बात की जाती है कि हमारी जो जनरल प्रैक्टिस, जो 80-90% जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं वो जनरल प्रैक्टिस करती हैं। और जब भी अगर किसी बड़े काउंसिल मेंबर्स या बहुत हाई लेवल पे जो सेमिनार होती है, जब बात की जाती है अपॉर्चुनिटीज फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या ग्रोथ की बात की जाती है, तब हमेशा ये बात आती है कि until unless you specialize you will not be able to grow. So now one is specialization and one is knowing all the laws and following all the laws and laws, and not only following, checking and reporting for each of your client for all the laws. Is it possible? तो दैट इज वाइट सतीश जी, मैंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। हम कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं है कि बटन दबाते ही हमारे को सारी नॉलेज रिमोट कंप्यूटर रिमोट की तरह हमारे को आती चली जाएगी। तो डेफिनेटली ये क्लॉज बड़ा ड्रैकोनियन क्लॉज है और ये एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है स्मॉल एंड मीडियम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कि वो तो कभी लिस्टेड कंपनीज के और पब्लिक इंटरेस्ट एंटरप्राइजेस के ऑडिट की तरफ देखे ही ना, या उसमें एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखे ही ना। दूसरा, कुछ काउंसिल मेंबर्स ने तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि देखिए हमने इस तरीके से इतना ब्यूटीफुल लॉ इसके अंदर लगा दिया है कोड ऑफ एथिक्स में, नाउ वी विल गो टू द गवर्नमेंट और हम कहेंगे कि हर एंटरप्राइजेज में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एम्प्लॉय होना चाहिए जिससे कि वो सारे कंप्लायंसेस का ध्यान रख सके। तो मेरा इसमें यही उनको कहना था सतीश जी कि क्या हम कोई मुखबिर हो गए हैं क्या सरकार के? हाँ, हमारी ड्यूटी है, हम प्रूडेंटली कर रहे हैं और हम प्रूडेंटली अपने फाइनेंशियल ओपिनियंस को देंगे, उसके लिए हम कमिटेड हैं।
लेकिन जो मेरा डोमेन नहीं है, जिसके लिए मुझे आई एम नॉट बीन पेड, और फिर मुझे कोई इम्यूनिटी नहीं है अगर मैं कोई गुड फेथ में काम कर दूं, पूरे कोड ऑफ एथिक्स में या कहीं पर भी ऐसी इम्यूनिटी नहीं है कि अगर मैंने गुड फेथ में सस्पिशियस के बेस पे अगर मैंने ऐसी रिपोर्टिंग कर दी और क्लाइंट ने मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच के लिए डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म इवोक कर दिया, तो मुझे क्या इम्यूनिटी ग्रांट होगी इसमें? ऐसा कहीं कोई मैकेनिज्म हमने पूरे कोड ऑफ एथिक्स में या एक्ट में लेकर के नहीं आए हैं। तो इस क्लोज को हमने प्रोटेस्ट किया। फिलहाल ये डेफर है, लेकिन डेफर ये विड्रॉ नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है ये इलेक्शन का सिनेरियो है, हीट ना पकड़ जाए, इसलिए इसको डेफर कर दिया गया है फर्दर 1 अप्रैल 2020 के लिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है काउंसिल से कि इसको विड्रॉ किया जाए, तुरंत इस तरीके के क्लॉजेस को तुरंत विड्रॉ किया जाए। रादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा जाए कि सारी इंस्पेक्शन एजेंसीज एक टाइमली मैनर में अपनी रिपोर्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर को दें, जिससे कि ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स के ऊपर कोई थ्रेट तो नहीं है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जब कारों में या अदरवाइज गोइंग कंसर्न के ऊपर अपना कमेंट करे, तो उसके पास एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रहे कि वेदर देयर इज एनी ऑपरेशनल थ्रेट टू द एंटरप्राइज और नॉट। Alternatively, government may not agree to what you are saying. Alternatively, there may be one common portal wherein all the departments should upload their shortcomings or relating to one client, wherein an auditor can see to it and look at it and then finalize their report and Yes, take a screenshot and whatever. यस तो इस परफॉर्मेंस सिविल रिपोर्ट, इस तरीके का कुछ सिविल की तरीके का मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है। आरओसी से उसमें मदद ली जा सकती है। कंपनीज और एलएलपी के केस में तो इसको स्टार्ट किया ही जा सकता है। और आरओसी में एक विंडो क्रिएट की जा सकती है कि कंपनी की इंफॉर्मेशन में इस तरीके की एजेंसीज को एक विंडो दे दी जाए जहां पर कि वो अपनी इस तरीके की चीजों को रिपोर्ट कर सके, सो दैट, क्योंकि वो तो वैसे ही पब्लिक इंटरेस्ट एंटरप्राइजेज है। तो आपका बहुत बढ़िया सजेशन है सतीश जी। तो यही देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग का यही फायदा होता है कि नए नए सजेशंस और अच्छे सजेशंस निकल के आते हैं। तो ये हुआ सर नो क्लार क्लोज। एक और दूसरा इसी तरीके का क्लोज है, सभी अपने प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई बड़े ध्यान से सुने इसको, भाई और बहन दोनों ही, और अपने एस्टीम्ड मेंबर सभी बड़े ध्यान से सुने। सेक्शन 410 फीस रिलेटिव साइज क्लोज इसको कहते हैं सर। ये क्या क्लोज है सर? सतीश जी, ये क्लोज कहता है कि इफ अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट receives more than 15% fees of his gross receipts, अपनी टोटल रिसीट का 15% से ज्यादा वो किसी एक ऑडिट क्लाइंट ग्रुप और रिलेटेड पार्टीज और एसोसिएट से रिसीव करता है, तो इट इज ए थ्रेट। और 2 साल के बाद तीसरे साल में ऑडिट करने से पहले उस ऑडिटर को, इस क्लाइंट को, जो चार्ज विद गवर्नेंस में जो बैठे हैं ऑफिशियल्स, द पर्संस विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस वर्ड यूज किया गया है, तो ऑनर दिस दोज चार्ज विद गवर्नेंस, या अगर कंपनी है तो देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीएफओ और हेड ऑफ ऑपरेशंस आर दोज चार्ज विद गवर्नेंस। तो किस किस एंटरप्राइजेज में कौन लोग हैं दोज विद चार्ज विद गवर्नेंस, ये कहीं डिफाइन नहीं है। बट यस, जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है उनको रिपोर्ट करना है, उनको कम्युनिकेट करना है कि लुक, मैं आपका ऑडिट करता हूं और आपसे प्राप्त होने वाली टोटल फीस मेरे को टोटल मिलने वाली 15% फीस का 15% से ज्यादा है। सतीश जी, इट इज सच ए ह्यूमिलेटिंग क्लॉज। मैं अपने क्लाइंट को जाके कह रहा हूं कि भाई आप ही मेरे माई बाप हो, 15% से ज्यादा का राशन तो आप मेरे घर में आपसे ही आता है। तो इट इज सच ए ह्यूमिलेटिंग क्लॉज। और फिर भी सॉल्यूशन नहीं है, केवल कम्युनिकेशन इज नॉट सेफगार्ड में बताया गया, फर्स्ट इज कम्युनिकेशन एंड देन फिर अगर क्लाइंट कंसेंट करता है देन आइदर वन नीड टू गो फॉर ए पोस्ट क्वालिटी रिव्यू और अ प्री क्वालिटी रिव्यू। तो क्वालिटी रिव्यू इज मोर देन ए पीयर रिव्यू।
तो क्वालिटी रिव्यू से सपोज पोस्ट में हुआ और उसमें लगा कि नहीं जी ये तो कहीं कमी रह गई, तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बन जाएगा वैसे ही। और अगर प्री क्वालिटी में रह गया तो भी डेफिनेटली फिर आप नहीं कर सकते उसका ऑडिट। तो इसमें हमने ये कहा कि इसमें एजम्पशन ऑफ थ्रेट ही कैसे आती है। केवल 15% फीस एक क्लाइंट्स ग्रुप से मिलती है, उसमें कैसे कोई थ्रेट क्रिएट हो जाती है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, पूरे क्वालिटी रिव्यू स्टैंडर्ड लगा करके अपना काम एग्जीक्यूट कर रहा है, तो आई डू नॉट थिंक देयर इज एनी थ्रेट। और हमारे यहाँ तो कोई वॉक इन कस्टमर तो आता नहीं है सर, हमारे यहाँ तो जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं से जुड़े हुए ही लोग आते हैं। हम तो वैसे ही, ये तो आज थोड़ा बहुत एडवर्टाइजिंग और ये सब चीजें परमिट कर दी है, वो भी प्रोफेशनल सर्कल में। हम अदरवाइज तो मार्केट में क्लाइंट सोलिसिट करने जा ही नहीं सकते। तो देन दिस इज टू माय माइंड इज ए वेरी वेरी ड्रैकोनियन क्लॉज। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, एग्जम्पशन है कि जो बैंक ऑडिट वाली फीस है वो 15% वाली क्लोज से अलग रहेगी, लेकिन वो 15% में केवल बैंक ऑडिट वाली तो अलग रहेगी। से सपोज आपकी टोटल फीस 10 लाख रुपए है किसी एक की, और 5 लाख तक की टोटल फीस को एग्जम्प्ट किया गया। तो आप ये देखिए सतीश जी, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई बहुत छोटा अकाउंटेंट होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसकी ग्रोस एनुअल रिसीट 5 लाख ही होगी, और 5 लाख इज ए वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट। ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि चलो 5 लाख तक वालों को एग्जम्प्ट कर दो। तो अगर आपकी मान लीजिए 10 लाख रुपए फीस है या 6 लाख रुपए टोटल ग्रोस रिसीट्स है आपकी, और आपको 1 लाख रुपया किसी एक क्लाइंट से आ गया, तो तीसरे साल में आप उसका ऑडिट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस पहले तो आप उस क्लाइंट को कम्युनिकेट करें और फिर उसकी कंसेंट लें और फिर अपना क्वालिटी रिव्यू कराएं। और उस क्वालिटी रिव्यूअर की कितनी फीस होगी ये जरा बता दीजिए, और वो कौन बियर करेगा ये जरा बता दीजिए। Sir, had it been 85% or 70%, 75%, then would have some meaning. Like there are members who have their one big client, and major fees they draw from that particular one or two groups, and is also practicing others. तो उनका लेकिन वहाँ time इतना लगता है बड़े clients के पास. So there, this kind of threat may be possible. Like you are actually at times you are actually on not on roles, but you are permanently employed there. But you are doing as a practice things. You are actually you are not on practice, but practically you are on practice. Yes. तो वहाँ ये threat जरूर आ सकता है. तो वो 15% is a very very small amount. Had it been 75%, 80%, then I would have thought that it is a welcome, provision. सर पहले इसमें 40% की लिमिट थी, बट उसमें भी ये जो मैं समझता हूँ क्लाइंट को कम्युनिकेशन करने वाली बात और ये क्वालिटी रिव्यू वाली बात नहीं थी। हाँ, सब्सटेंटिव फीस है 70%, 75%, 80%, और उसमें आप पीयर रिव्यू मैंडेट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इन्फॉर्मिंग टू द क्लाइंट। या देखिए आप अगर पीयर रिव्यू करते हैं और पीयर रिव्यू में फिर आपको लगता है कि पीयर रिव्यू तो एक इंटरनल रेगुलेशन है, और पीयर रिव्यू में अगर आपको लगता है कि नहीं देयर आर ब्रीचेस, देन आप पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर क्लाइंट को आप क्वालिटी रिव्यू पे ले जा सकते हैं इंस्टीट्यूट के पास, काउंसिल के पास। सपोज मेजॉरिटी 70-80% फीस इज फ्रॉम वन ग्रुप और वन क्लाइंट, and you can always look at the balance sheet of that particular firm. Yes. If there is expenditure on salary or other routine expenses very minimal, which would prove that you are actually an employee there and you are hiding the fact. So वो कहते हैं ना एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है. So there are few fishes, yes, which because of which this provision might have come. And with this 15%, it's very very difficult for so many small concerns to survive. हाँ, तो ये क्लॉज भी अभी 1 अप्रैल 2, और इसको इंस्टीट्यूट ने एक कम्युनिकेशन इशू किया था काउंसिल ने, और उसमें ये कहा गया था कि इसको रिकंसीडर कर रहे हैं, लेकिन वेदर द सेम हैज बीन रिकंसीडर्ड और नॉट अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये क्लॉज भी डेफर कर दिया गया अभी।
1 अप्रैल 2022 तक के लिए, लेकिन अभी विड्रॉ नहीं किया गया। आई एम ऑल्सो डिमांडिंग कि ये क्लॉज भी विड्रॉ होना चाहिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है। मैंने इसमें ये सजेस्ट किया कि आप पीयर रिव्यू करें। मोर ओवर यहाँ पर ऐसे ऐसे एंटरप्राइजेज हैं सतीश जी कि जहाँ पे CFO 2-2 करोड़ रुपए की फीस ले रहे हैं, और वहाँ पे बहुत सारी चीजें CFO बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वो सर्टिफाई भी कर रहे हैं, और कंप्लायंस एंड गवर्नेंस सर्टिफिकेट भी एज ए पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट इशू कर रहे हैं। तो अगर उनको कोई थ्रेट नहीं है, तो एक सिंगल ग्रुप का एक प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट काम करता है, तो उसको कैसे थ्रेट होती है, मैं बात को अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ यस, आप ऐसे क्लाइंट्स को पीयर रिव्यू, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करें कि मैं एक ही व्यक्ति का काम करता हूँ, आप मेरा पीयर रिव्यू रेगुलर बेसिस पे कराएं, और पीयर रिव्यू में कोई खामियां निकले तो क्वालिटी रिव्यू भी कराएं। बट देन ये इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट करना, ये मैं समझता हूं कि दिस इज बेसिकली ह्यूमिलेशन टू द प्रोफेशनल। CFO अगर 2 करोड़ रुपए की फीस लेने वाला CFO सर्टिफिकेशन कर सकता है, और हम ये मान रहे हैं कि यस उसके सर्टिफिकेशन में कोई बायस्डनेस नहीं है और वो अपने काम को बड़े अच्छे से अंजाम दे रहा है, बीइंग इवन ए एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों नहीं कर सकता? दिस इज माय होल सबमिशन इज। तो बट द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ये हमने प्रोटेस्ट किया। और रादर मैं आपको बताऊं सतीश जी, जब मैंने इसको प्रोटेस्ट किया तो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि मैं मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, और मेरे अगेंस्ट में इसमें डिसिप्लिनरी मैटर भी चल रहा है। मैं इसलिए इसके ऊपर ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। बट देन यस, आई एम प्रोटेस्टिंग दिस स्टिल, और मैंने कहा है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरी इंटरप्रिटेशन है। अगर आपकी कोई और इंटरप्रिटेशन है, आई हैव आस्क्ड सर्टेन क्वेश्चंस कि अगर आपकी कोई और इंटरप्रिटेशन है तो आप लेकर के आइए सामने, और एक वाइट पेपर इसके ऊपर लाइए ना, एक क्लैरिटी लाइए ना, एक पूरा कंप्लीट क्लैरिफिकेशन एक FAQ के माध्यम से लेकर के आए इसके ऊपर, तो दैट विल मेक ए सेंस। नाउ सर, लास्टली आई विल टच अपॉन एक और प्रोविजन है, सेक्शन 604। सेक्शन 604 क्या कहता है सर? सेक्शन 604 कहता है सर टैक्स रिलेटेड सर्विसेज। सो टैक्स रिलेटेड सर्विसेज सेक्शन 604 कहता है कि प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू एन ऑडिट क्लाइंट माइट क्रिएट ए सेल्फ रिव्यू और एडवोकेसी थ्रेट। तो अगर आप एक ऑडिट क्लाइंट को टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, टैक्स रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो थ्रेट क्रिएट करता है। तो किस तरीके की टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं सर एक ऑडिट क्लाइंट को? तो उसको भी इलस्ट्रेट किया है कोड ऑफ एथिक्स में कि एक तो टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विसेज है, देन टैक्स कैलकुलेशन सर्विसेज है फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेफर्ड टैक्स और करंट टैक्स को कैलकुलेशन करनी है। देन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स एडवाइजरी सर्विसेज है, देन टैक्स रिलेटेड वैल्यूएशंस हैं, एंड देन असिस्टेंट इन रिजोल्यूशन ऑफ द टैक्स डिस्प्यूट है, दैट मींस द टैक्स रिप्रेजेंटेशंस है। ये 5 तरीके की ब्रॉडर तौर पे टैक्स सर्विसेज आइडेंटिफाई की हैं। उन्होंने ये कहा है कि टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन में तो मोटे तौर पे कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन बाकी सारी सर्विसेज में अगर मैं टैक्स की कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैं अगर टैक्स की प्लानिंग और एडवाइजरी कर रहा हूं, मैं अगर टैक्स की वैल्यूएशंस कर रहा हूं, और मैं अगर टैक्स की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, ये चारों चीजें और कर रहा हूं, तो सेल्फ रिव्यू एंड एडवोकेसी थ्रेट है। अब ये थ्रेट एज्यूम की गई हैं, और उसका सेफगार्ड क्या बताया गया है? उसमें सेफगार्ड ये बताया गया है कि अगर अदर प्रोफेशनल जो कि ऑडिट टीम का पार्ट नहीं हो, वो अगर ये सर्विसेज करता है तो दिस कैन बी वन ऑफ द सेफगार्ड। तो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में तो कोई और अदर प्रोफेशनल तो आ नहीं सकता सतीश जी। और दूसरा कि अगर उसके ऊपर एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट कर दिया जाए कि हाँ जी ये मनमोहन खेमका प्रोप्राइटर ने ये टैक्स कैलकुलेशंस या ये सारी चीजें ये किया है,
और इसके ऊपर एक रिव्यूअर अपॉइंट हो जाए, तो ये थ्रेट एड्रेस हो सकती है। वो भी केवल और केवल नॉन पीआई, जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटरप्राइजेज नहीं है, केवल उन्हीं के केस में। जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटरप्राइजेज है, पब्लिक इंटरेस्ट एंटरप्राइजेज में जहां की पब्लिक स्टेक है, पब्लिक अथॉरिटीज का स्टेक है, जहां पर की लिस्टेड कंपनीज है, वहां पर ये सेफगार्ड भी काम नहीं करेंगे। वहां पर ये सेफगार्ड तभी काम कर सकते हैं कि जहां पर इंपैक्ट बिल्कुल इमैटीरियल होने की संभावना हो। जहां पर इंपैक्ट मटेरियल होने की संभावना है, वहां पर ये सेफगार्ड्स काम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, बाय वर्च्यू ऑफ दिस क्लॉज, जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स हैं, जिनके पास लार्ज नेटवर्क नहीं है, जिनके पास लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिनके पास इन हाउस अदर प्रोफेशनल अकाउंटेंट नहीं है, वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटरप्राइजेस का या लिस्टेड कंपनीज का एंगेजमेंट टैक्स का और ऑडिट का साइमल्टेनियसली कर ही नहीं सकते। हाँ, सिमिलरली अगर हम बिल्कुल सेपरेट डिविजन्स हो जाएं हमारी सब कुछ, तो ये चीजें एड्रेस हो सकती हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। तो दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल इशू कि क्या छोटे मोटे टैक्स रिप्रेजेंटेशन करने के लिए तो केवल क्या परमिटेड किया गया है, जो कहा गया है कि हाँ उससे टैक्स रिप्रेजेंटेशन में थ्रेट नहीं होगी, कि कोई आपने इंफॉर्मेशन सबमिट कर दी, कोई फैक्चुअल समरी सबमिट कर दी, कोई ऐसी समरी सबमिट करी जिसमें कि आपका कोई लॉजिकल या आर्गुमेंटेटिव चीज नहीं है, इंटरप्रिटेशनल से रिलेटेड इश्यूज नहीं है, तो ऐसी चीजों में ये कर सकते हैं। लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं आप बकायदा एज एन एडवोकेट, आइदर बिफोर द टैक्स अथॉरिटी और बिफोर द कोर्ट, तो दिस इज ए थ्रेट। और ये थ्रेट, ये काम करने से भी पब्लिक इंटरेस्ट एंटरप्राइजेस में जहां मटेरियलिटी बन जाएगी वहां पर एड्रेस नहीं होती, तो फिर ये किस तरीके से एड्रेस हो पाएगी ये भी नहीं बताया गया है। और उसके लिए फिर बताया गया कि या तो पहले से क्लैरिटी हो, कोई एडवांस रूलिंग हमने ले रखी हो, या कोई एस्टेब्लिश्ड ट्रेड प्रैक्टिस हो कोई इस तरीके की, या टैक्स लॉ का कोई बेसिस हो, तब ये एड्रेस हो सकती हैं। तो ओवरऑल अगर इस सेक्शन 604 को पढ़ें तो ये क्लियरली समझ में आता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कैन आइदर डू द ऑडिट सर्विस और कैन डू द टैक्स रिलेटेड सर्विस। दोनों चीजें साथ करते वक्त एक्चुअल में कोई प्रोफेशनल एंगेजमेंट में सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो या ना हो, या एडवोकेसी थ्रेट हो या ना हो एक्चुअल में, क्योंकि ये तो थ्रेट्स अज्यूम की गई हैं, बट डीमिंग मिसकंडक्ट जरूर हो जाएगा, डीमिंग ब्रीच ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स जरूर हो जाएगा अगर हम ऐसा काम करते हैं तो। एंड द वर्डिंग्स आर सो, द होल सेक्शन इज सो वर्डेड कि उसको इंटरप्रेट करना इज नॉट दैट इजी। ये भी एक अगेन थ्रेट है। इस प्रोविजन को भी अभी 1 अप्रैल 2022 तक के लिए डेफर कर दिया गया है, बट देन इसको भी विड्रॉ होना चाहिए और इसको एक वेरी बड़ा क्लियर क्रिस्टल मैनर में रखना चाहिए, डूज एंड डोंट्स के मैनर में रखना चाहिए कि हाँ ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज होगा क्या कि टैक्स एंड ऑडिट दोनों एंगेजमेंट या तो आप करें नहीं, और कर दिया तो किसी भी दिन एक स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन की चपेटे में आ सकता है। सो दिस वर द क्लॉजेस जो मैं आपको डिटेल में किया, और बाकी भी तो आई थिंक नाउ जगजीत जी वी कैन टेक सम क्वेरीज ऑफ द मेंबर अगर कोई हैं। दिस इज ऑल सो फार एज कोड ऑफ एथिक्स। अगर कुछ मेंबर्स की कुछ क्वेरीज हैं तो लेट अस टेक दोस फर्स्ट। श्योर सर, अभी तक Q&A में तो कुछ नहीं है, बट आई हैव टू चेक द चैट बॉक्स फर्स्ट। लेट मी चेक। So we have like the chat box. In the chat box we have good evening and the membership number, nothing else. सबके मेंबरशिप नंबर ही है, Yes, तो sir, मेंबरशिप nothing else. नंबर तो ये क्या Nothing else. हाँ,
So there is no any query, not even in the chat box and neither in this, the Q&A. So if you have any other points, so we can continue with the maybe the. So my request to all the members, if you have any query, please mention your query in the Q&A. So one question is there, sir, in the Q&A. Can a practicing CA write fiction novels? मैं समझता हूँ ये आर्टिस्टिक लिटरेरी वर्क है और इसमें कोई मनाही नहीं होनी चाहिए. अभी रिसेंटली काउंसिल ने परमिट किया है फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना. और मुझे ये नहीं समझ में आता कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना जिसमें 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक मार्केट खुली रहती है एंड इट इज अ वेरी बिग वर्क, अगर उसको परमिटेड किया जा सकता है तो फिर और दूसरी बिजनेस एक्टिविटी, आजकल तो सारे बिजनेसेस ऑटोमेटिक मोड में होते हैं, तो और दूसरी बिजनेस एक्टिविटी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्यों नहीं परमिट की जा सकती? फ्यूचर एंड ऑप्शन इज आल्सो लाइक इज अ बिजनेस ओनली. तो अगर वो बिजनेस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को परमिट किया गया, क्यों किया गया, किस इन्फ्लुएंस में किया गया, मुझे नहीं पता. बहुत सारी डिमांड उठ रही होंगी जरूर, बट देन एक तरफ तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एचयूएफ का करता होते हुए एचयूएफ का भी बिजनेस हैंडल नहीं कर सकता और दूसरी या उसके छोटे मोटे कामों को भी नहीं देख सकता, इवन दो पूरा का पूरा स्टाफ और मैनेजर हो. और दूसरी तरफ हम फ्यूचर एंड ऑप्शन परमिटेड कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलरली किस सेक्शन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एड्रेस करने के लिए इसको परमिशन किया गया मुझे समझ में नहीं है. बट यस, फिक्शन नावल तो आप जरूर लिखें और जब आप फिक्शन नावल लिखें तो उसकी एक कॉपी जरूर मुझे भेजिएगा. आई वुड लाइक टू रीड की क्वेरीज थी ये. डेफिनेटली ब्रिजेश बर्नवाल जी की क्वेरी थी. जरूर ब्रिजेश जी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड योर फिक्शन नावल. फिक्शन नावल जरूर पढ़िए, लिखिए, पढ़िए भी और लिखिए भी. ऐसी प्रतिभाएं बहुत हैं जगजीत जी हमारे पास जिनके मल्टी टैलेंट हैं जिनके पास. So even in the 1 month back we have received one very important the poem book from one of the member, the practicing chartered accountant from West Delhi, and what he has written in that book, that is totally the creativity of that person. So it's a we all the members having a different quality, even being a chartered accountant. So next question from Sanjay Kumar Lal ji. So how many private limited company audit one proprietorship firm can conduct in one financial year, sir? So number of private limited company का question है sir. तो number of private limited number of private limited companies which can be audited, I think 1% company को छोड़ करके मेरे ख्याल से जो टोटल लिमिट है वो लॉ में 30 की लिमिट है शायद. यस सर, 20+10 वाला जो है जिसमें से वाला है जी. यस, इंस्टीट्यूट 30 कहता है, वो कंपनी एक्ट के हिसाब से 20 है और उसमें वो भी है, उसमें भी लिमिटेशन है कि वो कौन कौन सी कंपनी कवर होती है. यस यस जी जी. सो अब तो जब कंपनी लॉ में है तो हमें कंपनी लॉ वाली लिमिट को फॉलो करना पड़ेगा. तो 20 कंपनीज पर उसमें 1% कंपनी इंक्लूड नहीं है. यस सर, दैट इज व्हाई 20+10 का वो रेशियो है जी. सो एनी अदर क्वेरी? नो सर. सो सतीश जी, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. अगेन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, तो जो भी सीए या अदर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स आपके नॉलेज में आते हैं जिनको फाइनेंशियल हेल्प अपने एजुकेशनल या मेडिकल पर्पसेस के लिए चाहिए, प्लीज़ डू इन्फॉर्म टू अस. हम कोशिश करेंगे जो भी लिमिटेड मीन्स हैं उसमें उनकी सहायता करने की. विद दिस, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच शास्त्री नगर सीपी स्टडी सर्कल, सतीश जी, जगजीत जी, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. और ये सब क्लॉजेज जो मैंने आपको बताए हैं इनका ध्यान में रख करके अपने प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स को लीजिए. थैंक यू वेरी मच सर. Thank you, Manmohan ji. First of all, my apologies. I was disconnected most of the time. Not most of the time, but I think 4-5 times I had to close my video. And though I was listening, but because certain members were calling me, our chartered accountant members were calling me for certain queries. So I was to give answer. That is why I slightly missed also. I could not listen, Manmohan ji. I would listen to your recordings this time. However, yes, it was as usual, wonderful and nice deliberation.
And I personally thanks all the members also who have joined, and Jagjit to give a formal vote of thanks. Yes, sir. Before giving this, vote of thanks, sir, one last question in the Q&A from Mr. Saria, sir. Sir, I think the small company are also not included. That 30+10, sir. नहीं, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है. आई नीड टू चेक एंड मैं चेक करके फिर आपको बताऊंगा सर क्या लिमिट्स हैं. हाँ, उसमें जो वो लिमिट है आईसीआई की, वो लिमिट वी हैव टू चेक. उसके बाद ही, हालांकि वो अगर हम उसमें सर्च करेंगे तो वो लिमिट भी हमें मिल जाएगी वहां पर. ठीक है सर. सो वोट ऑफ थैंक्स की तरफ चलते हैं. सो वेरी सर, थैंक यू वेरी मच सर मनमोहन सर, बिकॉज मैंने पहले भी देखा है, जितनी बार भी आपको सुना है. सो एक लर्निंग जो होती है एक नेक्स्ट लेवल पे रहती है. वो इतना आपके साथ अटैचमेंट होती है, आप इतना अटैच होके बात करते हैं, बड़े इत्मीनान से बात करते हैं. सो दैट इज व्हाई जो आप कहना चाहते हैं वो हम तक पहुंचता है. So there is a connection. There is a Satish ji कुछ ऐड करना चाहते हैं. I would add to it, Jagjit. I wanted to say, but I thought, I was missing in this different calls. So whenever you have a query, yesterday also it happened. Like one of our member, Avinash Gupta, he called me. I was busy. I responded that I'll call you later. So he sent me one query over WhatsApp. I asked him to contact Manmohan ji. I said that you call Manmohan ji and he'll be able to answer. He called Manmohan ji, and Manmohan ji not only picked the call, he also suggested whatever his query was, and query was resolved. So what I mean to say is, Manmohan Khemka ji is of such a nature and such personality, is always available to our fraternity, our members, resolving their query. अगर वो कभी बिजी होते हैं तो he'll definitely call back, चाहे वो उनके मोबाइल में saved number है या unknown number है. So he always pick the call and is always trying and giving answers to all our members' queries. So that is a very, very positive nature of Manmohan Khemka ji. So I can only wish here great good luck to Manmohan Khemka ji for his for this coming ensuing elections. Thank you very much. Thank you very much, Satish ji. Definitely, I can assure my members at large कि total 100% my dedication would be towards the profession and the professionals. और पूरी मदद कीजिए, पूरा सहयोग दीजिए. I assure you that I would be available 24/7 for all your professional administrative problems, and definitely we are looking ICAI to the glory which it must have achieved by now. Yeah. Yes, sir. That is why I was mentioning the quality of Khemka sir के जो वो connection चाहिए होता है ना. So when सर कुछ शेयर करना चाहते हैं ऑडियंस के साथ, और ऑडियंस के साथ वो बिल्कुल इन द सेम मैनर रीच टू द ऑडियंस. सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ खिमका सर, कि वो बड़े इत्मीनान से बोलते हैं और अपनी बात को पूरी तरह वो सामने वाले तक पहुंचाते हैं. तो वो कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत रेयर स्पीकर्स के बीच में वो क्वालिटी होती है. सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ आवर खिमका सर. सो वेरी रिस्पेक्टेड, वेरी नॉलेजेबल. मैंने पहले भी एक वर्ड यूज किया था, पहले भी बोला था, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ. बड़े ध्यान से सर वो बात को, और कभी भी समय नहीं देखते सर खेमका सर कि इस क्वेरी को मैं लेट हो रहा हूँ या कुछ हो रहा हूँ. नहीं, आई वुड से हमेशा खेमका सर ये समझते हैं कि इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू कन्विंस द मेंबर इफ दे हैव सम प्रॉब्लम. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ खेमका सर. सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट who have joined this program, and thank you Satish ji for arranging this. So over to you Satish ji, if you want to say something. Thank you very much. मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर. Yes sir. कोड ऑफ एथिक्स तो मुझे जब ये इस तरीके के क्लोजेस मैंने पढ़े तो मुझे स्पेशली पढ़ना पड़ा. और आई एज यू नो कि मैं तो मेनली जीएसटी में प्रैक्टिस करता हूँ, बट देन प्रोफेशनल इंटरेस्ट की जितनी भी चीजें हैं उनको पढ़ने की कोशिश करता हूँ. तो कोड ऑफ एथिक्स के अलावा जब भी कोई जीएसटी की आपकी कोई क्वेरीज हैं, वन कैन कैच होल्ड ऑफ मी. कोई इशू नहीं है.
और एक ही वर्ड में अपने विजन और मिशन की बात करता हूँ। विजन तो खैर बहुत बड़ी बात है, मेरा तो मिशन है कि ICAI शैल बी अटेंड द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बहुत सारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन को सेंटर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का टैग मिल रहा है, और वी आर सच ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री। 3,40,000 से ज़्यादा हमारे मेंबर हैं, 10 लाख के अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट हैं, और इतने हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डिलीवरेंस हैं, उसके बाद भी हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हमें टैग नहीं मिल रहा है, एक ब्रांड नहीं मिल रहा है। दैट इज माय विश कि मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे ICAI को एस्टेब्लिश कर पाऊँ। दिस इज द ओनली मोटो आई हैव। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मनमोहन जी। कुछ मेंबर्स का मैसेज आया है कि मनमोहन खेमका जी का नंबर, सो लेट मी शेयर। दिस इज 9810064427। I repeat, 9810064427. So you can reach Manmohan ji on this number, and he's also available on manmohankhemka@gmail.com. So for any queries relating to GST is always there, or otherwise also is very helpful. आप CA विचार मंच की वजह से उस माध्यम से भी मेंबर्स की हेल्प करते हैं, मेंबर्स और स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। तो आपने जैसे उन्होंने अपील पहले भी की, अगर किसी मेंबर्स को, किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, कुछ भी हेल्प की जरूरत हो स्टडीज के लिए उनका, और पर्टिकुलरली जो कोरोना और अदर सीवियर डिसीज की वजह से अगर कोई इशू है, तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच हिम। So with these words, I once again thanks Manmohan Khemka ji. Thank you very much, sir, for supporting us, for giving this time and deliberating on a very critical subject and critical issues. Thanks Jagjit, and thanks all the members. We do have a webinar on 20th of this month on Caro 20 and Schedule 3. Do join us. I'm coming, Jagjit. So Yeah. The necessary details and registration link shall be sent maybe today or tomorrow. So yeah, Jagjit. Yeah, happy Independence to each and every participant, to all the Happy members. Independence Day. बहुत स्वतंत्रता Thank you. दिवस की बहुत Thank you. शुभकामनाएं Thank और you. बधाइयां। Thank you. थैंक यू वेरी Thank you, मच sir. सर। Thank you.